Assalamu alaikum, students. As I told you yesterday, 7 C's of effective communication. This is very important topic, and definitely you have questions on it. And today and tomorrow, inshallah, we'll finish it. And whatever that is required, along with the notes and slides, I'll share with you. And by the time that definitely I don't send you today the slides and the notes. If you want to read, you can check from internet, you can Google it, you can read from PDF, you can read from both PDF. One is CA book and another is Kaplan book. And I think most of you have already started reading it. So along with that, the very important thing is that whenever you complete a topic, you are supposed to do the MCQs. It's a very important thing, right? And because if you are able to tackle and understand the questions, MCQs, obviously you have to answer like that. So you won't be having any problem. If you think you do not handle it, you can't do it, and you don't practice it, you won't be doing it in the examination. The reason is that, sometimes the questions, they are carrying some vocabulary, some expressions. If you don't know the meanings, it would be difficult for you, right? So we start our topic today, and whatever the questions, definitely I answer you at the end. And I think now everybody is clear about what to do. They are the part of the first step groups. They are girls and boys. Boys are going to have 2 groups right now. And whenever you come across any problem, you're going to check with GR and CR. If they are unable to answer, or I would say GR and CR, if you find anything that you can't answer, you can then contact me that what type of questions the students are asking you. You can just take guidance from me, right? So yes, it's going to be, I feel that's going to be a kind of limitation on the part of your preparation, is that you think that there should be a book and there should be definitely questions from that book, but unfortunately you don't have that book. And because the topic is so wide, we can't say that there is going to be specifically a book that you can read and you do it. That's why my effort is all the time that I'm going to put as much effective material in my notes that you are not finding any problem to just search for something more, right? So we start the topic 7 C's of effective communication. First, as you see, there are some pictures on that. There are kind of quotations over there, and the left side of the quotation says, the art of communication is the language of leadership. That if you want to be a leader, you want that people should hear you, and you have very good communication style, and you select very appropriate words. So this is going to be your one of the leadership skills. And the right side, the slide says 5 minutes of communication can save years of worth of turmoil and misunderstanding. यानी तकलीफ और misunderstanding से तुम बच जाओगे सालों की, अगर तुम एक 5 मिनट सही बात कर दोगे. तो sometimes we are unable to communicate to people. हम बिल्कुल बात से समझा नहीं पाते. और कई दफा आपने देखा है कि people they don't have good skills. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इवन आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो आपके कोई ना कोई दोस्त आपको कहता है कि तुम मेरे साथ यार चलो, तुम अच्छी बार्गेनिंग कर लेते हो, तुम अच्छी बात कर सकते हो. इसका मतलब है you have communication skills. You can make people understand कि तुम्हें जो है वो तुम एग्जैक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो और सही लफ्जों का इस्तेमाल करते हो. तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, पहली तो बात ये है कि इफ यू आर स्पीकिंग अ लैंग्वेज व्हिच इज नॉट योर लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि अंग्रेजी आप बोलते हो, तो आपको अंग्रेजी की एक्सपर्टीज तो पहले होनी चाहिए ना. आप दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, यू विल फाइंड पीपल जो अंग्रेजी तो समझ लेंगे. तो आपको अंग्रेजी में महारत चाहिए, वोकैबुलरी चाहिए, आपका स्टाइल ठीक होना चाहिए बात करने का, ठीक है. तो ये चीजें जो है आपने इसका ध्यान करना है. तो दिस इज गोइंग टू मेक यू अ लीडर इन अ वे कि आप में से, जैसे मैं ट्रेनिंग्स बहुत कराती हूँ, तो मैं आपको बहुत दफा ये बात बताइए, तो मैं जब ग्रुप्स में लोगों को बिठा देती हूँ, और देखिए थोड़ी ही देर में उस ग्रुप में से कोई ना कोई एक पर्सन या ज्यादा से ज्यादा 2 लोग जो है उस ग्रुप में से इमर्ज होते हैं, उसमें से एकदम से प्रोमिनेंट हो जाते हैं, एंड एक्चुअली दे आर हैविंग लीडरशिप स्किल्स. और उनके अंदर ये होता है कि वो एक तो ये भी बात होती है कि वो डोमिनेट भी कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन आप खाली डोमिनेट खोखले तरीके से नहीं कर सकते unless you have knowledge, unless you have good expression and you can make people understand what you think. जब तक ये लोगों को नहीं समझा पाओगे, लोग कैसे तुम्हें लीडर मानेंगे? ठीक है, तो लीडर जो होता है, कहा जाता है ना, लीडर हैज अ फॉलोअर्स. जो लीडर होता है उसके फॉलोअर्स होते हैं जो कि उसकी बात को सुनते हैं. तो अभी मैं इसके बारे में आपको बहुत कुछ बताती हूँ. स्लाइड्स थोड़ी सी हैं जिसमें सिर्फ टू द पॉइंट बात की गई है, लेकिन नोट्स जो है वहां से पढ़ाऊंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके पास 7 C's है. बिफोर आई मूव ऑन टू दैट, एक मैं स्लाइड चेंज करके आपको ले जाती हूँ. आप देखो यहाँ पर, यू सी एक बिजनेस सिनेरियो है, लोग जो है वो बातें कर रहे हैं एंड दिस शोज कि एक पॉजिटिव एनर्जी है सबके चेहरे पर, जो आपको तस्वीर में लोग नजर आ रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि दे आर हैविंग दिस एक्सप्रेशन इन अ वे कि उन्होंने बात को वर्बली एंड नॉन वर्बली, हमने कल टॉपिक नॉन वर्बल खत्म किया था, तो उसमें भी आप देखिए कि नॉन वर्बली आप लोगों को जो है वो बी और वर्बली भी कैसे कम्युनिकेट करते हो. तो आपके पास एक्चुअली 7 प्रिंसिपल्स है. आपने देखा इस स्लाइड पे भी मैंने 7 C's लिखा हुआ है सेंटर में. 7 का डिजिट है, C लेटर है, एपोस्ट्रोफी लगी है, S लगा हुआ है. मैं पहले आपको इसका थोड़ी सी इसका बेसिक्स बता दूं. ये एक पंक्चुएशन का स्टाइल है. पंक्चुएशन आपने सीखी है ना, फुल स्टॉप कॉमा लगाना, किसी जमाने में जरूर सीखी होगी. साइन एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, आपने सब सीखा है. ये एपोस्ट्रोफी तब लगाते हैं हम जब किसी की पोजेशन होती है. जैसे आपने कहा जी बॉयज असाइनमेंट, ठीक है, मैनेजर्स टास्क, लीडर्स रोल, आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो ना. लेकिन वहां पर आप पोजेशन शो करते हो. यहाँ पर किसकी पोजेशन, आपने एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया? उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ. अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पंक्चुएशंस, कि अगर आपके पास कोई डिजिट्स या कोई लेटर आपने उसको प्लूरल फॉर्म में दिखाना हो, तो आप उसे एपोस्ट्रोफी एस से उसे कहते हैं प्लूरलाइज करना. आप उसे क्या कर देते हो, यू मेक इट प्लूरल. आप प्लूरलाइज कर देते हो बाय पुटिंग व्हाट, एपोस्ट्रोफी एंड एस. तो ये 7 C's, आपने 7 को C 7 थे आपके पास, आपको नजर आ रहे हैं सर्कल में घूमते हुए. आपने कहा जी कैसे, आपने कहा जी कंप्लीट है, करेक्ट है, क्लियर है, कॉन्क्रीट है, कंसाइज है, कंसिडरेशन है, कर्टियस है. तो अभी मैं इन पे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देती हूँ सारी चीजों का. बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुनना, इसके बगैर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी. 4 C आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे और आसान जरा है, इजी समझ आ जाएंगे. और जब आपका बेस थोड़ा बेहतर बन जाएगा, तो कल हम जब पढ़ेंगे तो आपको फिर ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी. और फिर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगी कि हाउ यू कैन मेक इट लाइक प्रैक्टिकल, दैट यू आर यूजिंग दीज 7 C's इन तमाम 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के रूल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रूल. और एक बात याद रखिएगा, आपको एमसीक्यू जरूर आता है. वो पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ रिटर्न में होंगे? आपने कहना नहीं, रिटर्न ओरल बोथ. एक बंदा लंबी बात करता है, आप कहते हैं यार कम टू द पॉइंट, क्या है तुम्हें, बात करो ना, छोटी करो यार, मुख्तसर बात किया करो. तो आप उसको कंसाइजनेस के लिए कहते हैं. और एक बंदा है वो बात थोड़ी सी करके चला गया, ओ यार वापस आओ, बताओ मुझे, कंप्लीट तो बताओ ना, क्या करना है मुझे. अगर कोई यानी आपको ऐसी बात कर जाता है तो यू आर नॉट गेटिंग द आइडिया. और कभी कभार कुछ लोग क्लियर नहीं बोलते, यानी क्लियर से मुराद ये नहीं कि वो उनकी आवाज में कोई प्रॉब्लम है, यानी बात क्लियर नहीं करते. कि आप उन्हें कहते हैं ये भेज दें, अच्छा चले इतनी चीजें भेज दें, फिर कहेंगे इतनी चीजें भेज दें, उसके बाद उनको ये नहीं बताते कि पहले आपको क्या चाहिए, आपकी प्रायोरिटी क्या है. लाइक यू ऑर्डर अ पर्सन टू मेक समथिंग, से आप किसी शेफ को ऑर्डर करते हैं कि मेरे लिए 2-3 चीजें बना दो, तो वो क्या उसके हाथ में कोई मैजिक तो नहीं है ना कि वो स्टिक लगाएगा तो वो फौरन चीजें तैयार हो जाएंगी. ऑब्वियसली उसको उस पर काम करना है. तो इफ यू टेल क्लियरली योर प्रायोरिटी कि तुम्हें पहले क्या चाहिए, तो ऑब्वियसली वो उसको पहले से बनाएगा. तो समटाइम्स पीपल आर नॉट क्लियर. दैट्स व्हाई हम इन प्रिंसिपल्स का अप्लाई करेंगे रिटर्न में भी, ओरल में भी, ताकि हम अपनी बात दूसरों को समझा सके. ठीक हो गया. एक और बात आपको मैं बताना चाहूंगी, वो ये है, किसी ने ये भी बात कही, उसने कहा यू कैन हैव ब्रिलियंट आइडियाज, तुम्हारा दिमाग भरा पड़ा आइडिया से, बट इफ यू कांट गेट देम अक्रॉस योर, अगर तुम
गेट देम अक्रॉस का मतलब है उसे दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते, आप दूसरों के दिमागों में नहीं डाल सकते अपने अक्रॉस योर आइडियाज, वॉन्ट गेट यू एनीवेयर। तो तुम्हारे आइडियाज तुम्हें, यानी यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था लेकिन ये मैंने उठाया वहां से क्रॉस के बाद कॉमा, योर आइडियाज वॉन्ट गेट यू एनीवेयर, तो तुम्हारे आइडियाज तुम्हें कहीं नहीं लेके जाएंगे। वॉन्ट जो है वो क्या होता है, विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। योर आइडियाज विल नॉट गेट यू एनीवेयर, तुम्हारी आइडियाज तुम्हें कहीं नहीं लेके जाने वाली, यानी तुम्हें कहीं का नहीं रखेंगे, तुम्हें कहीं का नहीं पहुंचाएंगे जब तक के तुम्हें दूसरों को अपनी बात समझानी नहीं आए। आप बिलीव करो, you go for an interview, you are unable to convince the person that you can do work for their company, they won't hire you. Why should they? उसकी बजाय एक और बंदा है, वो उसको आपको अच्छी तरह बता रहे हैं, उसे वो क्यों ना हायर कर ले। इसी तरह आपका सीवी जब वहां जाता है, आप अभी पहुंचे ही नहीं होते तो आपका पासपोर्ट तो पहुंच गया ना, सीवी इज काइंड ऑफ पासपोर्ट, उसके ऊपर आपको वीजा देंगे, आओ या ना आओ, ठीक है ना, तो स्टैंप लग के आ जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर खुदा न खासा आपका सीवी ही ठीक नहीं है, उसमें इतनी मिस्टेक्स हैं और वो इतना इफेक्टिव पिक्चर नहीं दे रहा आपकी, तो दे वोंट हायर, ठीक है। तो आपने उनको कन्विंस करना है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं जानते, आप कोई बहुत ही कोई ब्रिलियंट चीज होंगे लेकिन आप अपने घर में ही रहेंगे क्योंकि वो आपको नहीं हायर करते। इसके बाद आपको बहुत जरूरी बात बतानी है, वो ये है कि फ्रांसिस जे बर्जन उस पर्सन का नाम है जिसने सबसे पहले 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन पर बात की है। उसने बताया है कि 7 प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं जी ये चीज इस्तेमाल करें, जैसे 3 P's। 3 P's का मतलब है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। फिर इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं जी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन कोवे ने कहा, उसने 7 का वर्ड यूज किया। इस तरह अभी मैं आपको बताऊंगी, जैसे 5 W's अभी मैं यूज करूंगी तो आप उससे कहेंगे 5 W's क्या होते हैं, आपको उसका मतलब भी मैं समझाती हूँ। तो यहाँ पर फ्रांसिस जे बर्जन ने 7 C's का कॉन्सेप्ट दिया और कहा उसने कि जो 7 C के साथ शुरू होने वाले लफ्ज हैं ये असल में प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। प्रिंसिपल्स के स्पेलिंग PRINCIPLE वाले, ठीक है, IPLE वाले, ए वाले नहीं, प्रिंसिपल नहीं, कवानीन, रूल्स। तो कम्युनिकेशन के ये रूल्स हैं और अगर आप इसको अपने साथ बांध लेंगे, हमेशा अपने साथ कैरी करेंगे, तो आपकी बात जो है रिटन स्पोकन दोनों में लोगों को समझ आएगी। तो इसमें मैंने रेड हाईलाइट किया है कंटेंट, यानी क्या तुमने उनको देना है, क्या मैसेज होगा तुम्हारा, और तुम्हारा स्टाइल क्या होना चाहिए। दोनों ही चीजें मैटर करती हैं व्हेन यू आर पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन टू अदर पीपल। तो ये आपको मैंने फ्रांसिस जे बर्जन के बारे में बता दिया, जिसने कि हो सकता है एग्जामिनर आपको इसका नाम आपको आना चाहिए कि उसने ये बात कही थी, नोट कर लो कहीं पे। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, थोड़ा सा बताऊंगी स्लाइड से, फिर हम नोट से पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि वी कैन स्पेंड ऑलमोस्ट आवर एंटायर डे, पूरा दिन कम्युनिकेटिंग। जब हम ऑफिस में होंगे तो कम्युनिकेट ही तो करेंगे ना। अगर आपने लिख भी रहे हैं जी मैं तो रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, आज मैंने अपने कमरे से नहीं निकला, तो रिपोर्ट तो तैयार कर रहे हो ना, यू आर राइटिंग डाउन समथिंग and you are spending your time in writing, and then one day when it is complete you are going to be sending it to other people or maybe reading it on the stage or maybe distributing among other colleagues, ऐसे तुम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर लिखा है पहला वाला पॉइंट, यू राइट ईमेल्स, यू फैसिलिटेट मीटिंग्स। जरूरी नहीं कि तुम जाते ही बॉस बन जाओ, तो मीटिंग को फैसिलिटेट कर रहे हो, मीटिंग के लिए नोटिस भेजते हो, एजेंडा बनाते हो, हम मीटिंग पढ़ेंगे और उसमें हम सारा ये देखेंगे, ठीक है। कोरम डिसाइड करते हो कि कौन कौन मीटिंग में आएगा। जैसे अभी आपने देखा है कि 7th को कल मीटिंग हुई और उन्होंने इसमें हेल्थ वाले बैठे हैं, एजुकेशन वाले बैठे हैं, उन्होंने एक फैसला किया। आपका क्या समझते हैं, ये मीटिंग बगैर ही हो गई, उसको फोन करके कहा भाई तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिनिस्टर्स आके इकट्ठे हो गए एंड द मीटिंग इज देयर? नो, दे आर गोइंग टू हैव सेक्रेटरीज, दे आर गोइंग टू सेट एन एजेंडा और वो उनको बुलाते हैं, फिर जाके मीटिंग होती है, हर चीज क्लियर होती है, हर चीज कंप्लीट होती है, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेट इन कॉन्फ्रेंस कॉल्स, आप कॉन्फ्रेंस कॉल में सारे उसमें बैठे हैं, या आप वीडियो कॉल कर रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें आप बैठे हैं। इसके बाद क्रिएट रिपोर्ट्स, अभी मैंने आपको बता दिया। डिवाइस प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन बनाते हो। डिबेट विद योर कॉलीग, आप कॉलीग जो है वो कहता है कि नहीं नहीं हमें ऐसा करना चाहिए, आप उसके बहस कर रहे हैं, आप उसको पॉइंट से कन्विंस करेंगे कि नहीं हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो आप जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको मिसाल देती हूँ, आपने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है। आप ये बात समझ लो कि होता क्या है कि
जो आपकी जो कंपनी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक प्रोडक्शन करती है, फॉर इंस्टेंस जो भी चीजें बनाती है, से आपके फूड आइटम्स बनते हैं, से डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप क्या करते हैं, आप चीजें जो बेच रहे होते हैं उससे रिलेटेड, डेयरी से, जैसे आप मिल्क, योगर्ट आप बेच रहे हैं, आपकी कंपनी डिसाइड करती है कि अब हम अपनी प्रोडक्ट लाइन बढ़ाते हैं, यानी इससे मिलती जुलती चीजें जो हैं वो और ज्यादा कर लेते हैं, ताकि हमारा क्या हो, सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, चीजें ज्यादा बिके। अब आपने जैसे फॉर इंस्टेंस आपको पता है नेस्ले वाले जो हैं, दे गिव योगर्ट, लेकिन उन्होंने साथ फ्लेवर्ड देना शुरू किए, उन्होंने साथ रायता वगैरह देना शुरू किया। ये आप ये ना सोचें कि रातों रात उनके कान में एक रात में को ख्वाब आता है और मैनेजर सुबह कहता है नो जी अब डब्बों में रायता भर दें। आई मीन डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकायदा मीटिंग्स बैठती हैं, उसके ऊपर रिसर्च होती है, वो सारे प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं और फिर जाके एक प्रोडक्ट है लॉन्च होती है, कोई भी प्रोडक्ट हो। जैसे आपने फ्रोजन आइटम्स हैं, आपने क्या क्या बढ़ा लिया अपने आइटम्स के अंदर, ये सारा कुछ जो है वो क्या करते हो, आप उस पर डिबेट करते हो, उस पर बात करते हो और फिर रिसर्च करके काम करते हो। इस अगला पॉइंट लिखा है, दिस इज व्हाई द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड अ चेकलिस्ट। एक चेकलिस्ट तुम्हें मिल जाती है कि तुमने क्या क्या करना है, for making sure that your messages are well constructed and clear, so your audience get your message, ताकि ऑडियंस इसको, हमारे मैसेज को ग्रैस्प कर सके, तुम्हारे मैसेज को अंडरस्टैंड कर सके और वो समझ सके कि तुम उसे कहना क्या चाहते हो। आप वरना एक बंदा बात करके चला जाता है, आप कहते यार क्या कह के गया है, तुम्हें समझ आई है, तुम्हें समझ आई है। अगर एक बंदा बीच में कहता हाँ यार मुझे तो समझ आ गई है, इसका मतलब है कि जो मैसेज देने वाला था ना वो एक बहुत बड़ा फेलियर था, उसने सारों को कंसिडर ही नहीं किया, उसे देखा ही कि लोग डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, तो उसने मैसेज को इस तरह से बनाया कि चंद लोगों को जो कि उसके कैलिबर के होंगे या उनसे उनकी केमिस्ट्री मैच करती है, उनके साथ वो वेवलेंथ मैच करती है, उनको वो मैसेज दे गया और बाकियों को समझ नहीं आया। तो हमें हर तरह से हर चीज का ख्याल रखना है। इसके बाद हम एक और चीज यहाँ पे देखेंगे जी, अब देखते जाइए। आपको नाम याद करने, पहले तो आपको नाम आ जाने चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीटनेस, कंसाइज होना चाहिए, कंसाइजनेस, शॉर्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन इसके अंदर होनी चाहिए, यानी लोगों का ख्याल करना, लोगों को फील करना। इस पे हम पूरी बात करेंगे, अभी सुनते जाओ। मैं बार बार रिपीट जो चीजें करती हूँ उसकी वजह ये होती है कि तुम्हारी मेमोरी में कहीं ना कहीं कोई लफ्ज अटक जाए ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। तो कंसिडरेशन, इसको कंसिडरेट कहते हैं। अभी हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, हम इस पे कल बात करेंगे क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और ये काफी टाइम लेगा। और कल पे मैंने 3 रखे हैं, आज पे मैंने 4 रखे हैं और ये टॉपिक जो है हम कवर करेंगे। और मैंने आपको बोला था कि अभी हम जो टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं है कि कल को क्या डिसीजन होता है, आपकी क्लासेस ऑनलाइन ही रहती हैं या आप शिफ्ट हो जाते हो फिजिकल पे, वट एवर, बट माई एफर्ट्स आर इन अ वे, आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द मैक्सिमम मैं दे दूं और उसके बाद आपके दिमागों में सारी चीजें क्लियर हो जाएं। जैसे फॉर इंस्टेंस होता है ना कि जैसे आप एक पूरा मैप आपके सामने होता है, आपने जी आज जाना है, आज आपने कलाम जाना है मसलन, रास्ते आपको पता है, आपने अपना जीपीएस ऑन किया हुआ है या इसके अलावा आप मैप देख रहे हो गूगल मैप के साथ साथ, तो आपको हर चीज क्लियर होती है आप कहाँ पहुंच रहे हो। और आपको लोगों से भी पता कर लिया, जो है ट्रेवल स्टोरीज भी पढ़ ली, तो यू आर नाउ क्लियर व्हाट टू डू। तो इस तरह जब आप सारे टॉपिक्स देख लेते हो ना, तो आपको एक किस्म की सारी आपके सामने माइलस्टोन्स होते हैं। माइलस्टोन समझते हो ना, आप हाईवे पे सफर करते हैं तो जगह जगह आपको लगा आता है कि अब कहाँ आ गए हो। जैसे मैं लाहौर में रहती हूँ, लाहौर से हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में हम देखते हैं जी सुखे की आ गया है, फिर देखते हैं भेड़ा भी है रास्ते में, कलर कहार भी है। मतलब मैं आगे पीछे करके बोल रही हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि आपके पास जो है ये सारे, इससे पता चलता है आप कहाँ पे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप क्लियर हो जाएंगे व्हाट यू डू एंड व्हाट आर यू। अगर मैं ही आपको बढ़ाती रहती हूँ तो फिर मैं आपको सारा ही जो जो चीजें एडिशनल हैं मैं आपको दूंगी, इसलिए यू डोंट वरी अबाउट इट। पूरी तवज्जो से इसको समझें, वक्त का फायदा उठाना करें। तो हमने कंसिडरेट होना है, किसी के लिए कंसिडरेट होना है, किसी को फील करो, इसको क्या चाहिए, इसकी नीड्स का ख्याल करो, दैट इज कंसिडरेशन। कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीट क्या होती है,
पंजाबी में या उर्दू में शायद कहते हैं, कंक्रीट या इंग्लिश में ही कहते होंगे, जो आपके घरों में बनते हैं या सड़क बनती है तो वहां पे कहते हैं कंक्रीट जो है ना बिछाया जा रहा है, या कंक्रीट लिखा होता है, शॉप्स होती है ना कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाली, उसके ऊपर भी लिखा होता है। तो कंक्रीट इज समथिंग सॉलिड। अब ये सॉलिड क्या है? क्या लोगों के सर पे आपने हथौड़े मारने तो सॉलिड हो जाएंगे? नो। कॉन्क्रीटनेस का मतलब है आपका मैसेज इतना सॉलिड हो कि जो तुम कहना चाह रहे हो उसको एग्जैक्ट समझ आ गए। अगर मैं आज आपको डॉलर का रेट बताती हूँ, फॉर इंस्टेंस डॉलर का रेट है जी, मिसाल के तौर पर, मैंने अभी चेक नहीं किया लेकिन अभी मैं रफली बताती हूँ जी, आज है जी 168। आप कहेंगे नो नो 168.75 एग्जैक्ट कॉन्क्रीट, सही डेसिमल बताओ, क्योंकि अगर आप मिलियंस का कारोबार कर रहे हैं तो डोंट यू थिंक कि ये डेसिमल कितना इंपॉर्टेंट है? 0.75 तो पौना डॉलर बनता है, ठीक है ना, या पौना रुपया बनता है आपका। तो इस तरह से आपने क्या करना है, मैसेज को सॉलिड देना है। ये मैं आपको कल बताऊंगी सारा, आज सिर्फ आइडिया दे दिया। क्लैरिटी, ये आज हम पढ़ेंगे। क्लैरिटी मीन दैट्स ऑल क्लियर, कोई वेग बात नहीं है, कोई ब्लर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम्हारी गाड़ी तुम चला रहे हो तो उसका शीशा जो है वो साफ करो, अगर वो क्लियर है तो तुम्हें सामने नजर आ रहा है सही। इसी तरह अगर फॉग है, जैसे धुंध हो जाती है कुछ इलाकों में हमारे मुल्क में, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आप अपनी येलो जो लाइट्स होती है या फॉग लाइट्स हैं वो ऑन हम कर लेते हैं, या सड़कों पे फॉग लाइट्स ऑन हुई होती है येलो सी कलर की जिसमें आपको वो नजर आ रही होती है। तो ये क्लैरिटी अगर नहीं होगी तो पीपल आर नॉट क्लियर व्हाट टू डू, व्हाट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद एक कर्टसी, कर्टसी भी कल का टॉपिक है, आज का नहीं है, क्लैरिटी आज का है। कर्टसी जो है वो क्या है? बी मॉरल, बी एथिकल, बी इन मैनर्स, गुड एटिकेट, मैनरिज्म, तमीज से बात करना, दिस इज कर्टसी, ठीक है ना। तो ये मैं आपको कल इसके बारे में बहुत क्लियर एग्जांपल्स दूंगी, क्योंकि कर्टसी और कंसिडरेशन लोग मिक्स कर जाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद है करेक्टनेस, ये आज का टॉपिक है। करेक्ट मीन ठीक होना चाहिए, हर तरह से करेक्शन कर दो, गलती हो गई है, ग्रामर गलत है, स्पेलिंग गलत है, डेटा गलत डाला है, डिजिट गलत है, स्टेटिस्टिक्स गलत है, ठीक करो, ठीक हो गया ना। तो ये करेक्टनेस में आ जाएगा। तो आज हमने जो पढ़नी है 4 टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे, कंसाइजनेस पढ़ेंगे 2 हो गया, क्लैरिटी पढ़ेंगे और करेक्टनेस पढ़ेंगे। ये चारों ही बहुत आसान है, आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगे और बाकियों को आप याद रखिए। अब मैं एक चीज आपको जल्दी बता दूं, आपके सिलेबस में यही है, अगर एग्जामिनर आपको कहता है विच वन इज नॉट अमंग 7 C's, एक सवाल आता है आपको MCQ, अगर आपको इनके नाम नहीं आते तो आप तो धोखे में आ जाएंगे। हो सकता है एक वर्ड कम्युनिकेशन ही क्यों ना लिखा हो बीच में, 7 C's के अंदर एक लफ्ज कम्युनिकेशन डाल दिया उसने और तुम्हें पता ही नहीं चला, तुमने टिक कर दिया, तुमने कहा हाँ हाँ ये ठीक होगा, ठीक है। तो आपने सी से तो दुनिया भर में कितने ही लफ्ज हो सकते हैं, आप हो सकता है कि आप कोई और लफ्ज इसमें डाल दें, तो आपने इनको याद कर लेना है, ठीक है। जो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी मेमोरी जो आपको धोखा ना दे दे, इसलिए यू ऑलवेज रिमेंबर द नेम्स, ये आपको याद कर लेनी। और एक बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, लोग कंप्लीटनेस और कंसाइजनेस पे बहुत बहस करते हैं। वो कहते हैं आप कह रहे हैं जी कंप्लीट भी करें तो ये लंबा हो गया, तो आप साथ कहते हैं कंसाइज करें, छोटा करें, तो क्या करें हम? अरे ये इसका बात का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा वर्डिंग निकालो, रिडंडेंट मत करो, जिसके बगैर गुजारा हो सकता है वो लफ्ज तुम इस्तेमाल उसको निकाल छोड़ो। तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दूंगी और अभी आप इसको साथ साथ मेरे समझते जाइए, तो आप बड़े ब्रॉड जो है ना जहन के साथ इसको सुने कि मैं क्या बता रही हूँ। पहला है जी कंप्लीटनेस, अभी मैं आपको सिर्फ पिक्चर से हल्का फुल्का दिखा रही हूँ। कंप्लीटनेस में आपने देखा कि हम बचपन में आपने जरूर खेला होगा जिक्सॉ पजल, ये जो पजल गेम होती है, आप जोड़ते जोड़ते आप डिफरेंट उसकी जो पीसेस हैं पजल के वो जोड़ते हो और एक पिक्चर बन जाती है। कहीं ना कहीं चीज इनकम्प्लीट होती है, जो आप अगर मैसेज पूरा नहीं देते तो मैसेज नहीं गया किसी के पास। मिसाल के तौर पर मैं आपको बिफोर आई मूव ऑन टू आपकी जो नोट्स हैं वो तो जाहिर है आप खुद भी पढ़ लेंगे, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो यू कैन रीड योरसेल्फ, बट आई विल गाइड यू डेफिनेटली, मैं आपको सारा करूंगी। देखिए एक बड़ी जरूरी बात,
कंप्लीट मैसेजेस के लिए हर्टा मर्फी की जो आपकी रिकमेंडेड बुक है, 2 बुक्स है ना, एक बवी की एक मर्फी की, तो मैं आपको कहा था कि मैं उसमें से आपको खुद ही गाइड कर दिया करूंगी। हर्टा मर्फी ने अपनी बुक में ये लिखा है कि आपने कुछ चीजें, जैसे कि एक पर्सन ने इंक्वायरी की, आपको इंक्वायरी लेटर लिखा और कहा कि मुझे ये चीजें चाहिए या मैंने ये काम करना है तो मुझे बताइए। वैसे मसलन मैंने टिकट खरीदनी है किसी जगह की, तो आप मुझे गाइड करेंगे ना कि टिकट कब लो, कब जरा सस्ते हो जाएंगे, या कौन सी फ्लाइट तुम ले लो वो तुम्हें इकोनॉमिकल पड़ेगी, या तुम कनेक्टेड फ्लाइट फिर ले लो तो तुम्हें और इकोनॉमिकल पड़ेगी, रास्ते में रुकना तो पड़ेगा 2 घंटे तुम्हें किसी और स्टेशन पे, किसी और एयरपोर्ट पे, तो तुम कहोगे ठीक है। तुम्हें उसने कंप्लीट पिक्चर दी है, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम चूज करो। तुम्हारे लिए अगर 2 घंटे किसी जगह पे रुकना जो है वो मुश्किल लग रहा है, बाजू का आपको सामान तो खैर आपका दूसरी फ्लाइट में चला ही जाता है, लेकिन आप कितनी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, आप कहेंगे व्हाई शुड आई डू इट, ठीक है। तो आपको पिक्चर तो पूरी दी उसने। अब हर्टा मफी ने एग्जाम्पल दी कि एक बंदा है, दूसरे शहर मूव किया है, यानी दूसरे शहर क्या होता है, मुंतकिल हो किया है, यानी दूसरे शहर में चला गया है अपना घर बार जो लेकर, तो वो दूसरे शहर में मूव किया है। तो वहां पर उसने, वो स्पोर्ट्स वगैरह करता है, जिम करता है, उसने वहां का स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करना है। उसने वहां के मैनेजर को एक ईमेल लिखी या खत लिखा, उसने कहा कि जी मैं आपका ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे मेंबरशिप चाहिए। अब बस इतना ही पूछा ना तुमने, मेरा काम क्या है पूरा बताना। मैंने उसे बताया कि जब तुम मेंबरशिप के लिए आओगे तो फला फला दिन आना, इस दिन हमारा ऑफिस बंद होता है, ये मेरा फर्ज है उसको बताना। उसने तो नहीं पूछा था। और उसको ये बताना मेरा फर्ज है कि कौन कौन से तुम डॉक्यूमेंट्स लेकर आओगे, मेरा फर्ज है। और ये भी तो मैं बता सकती हूँ इवन कि अगर वो नया इस शहर में आया है तो मैं उसको इवन पार्किंग भी बता सकती हूँ कि हमारी जो पार्किंग है वो किधर है, एम्बिग्विटी ना हो, परेशानी ना हो जाए, वो बंदा सीधा तीर की तरह आपके पास आ जाए और कितना खुश होगा कि आप जो है आपने क्लियर बताया। जैसे कि कुछ इलाकों के लोग होते हैं ना, हमारे कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं, हम बाज इलाके के लोग ऐसे हैं, हम लोगों को छोड़ते नहीं, हम कहते हैं जी फला यहाँ ऐसे करते हैं। अब जैसे लाहौर के लोग हैं, मैं खुद चूंकि लाहौर से हूँ, मैं आपको फ्रेंकली बता सकती हूँ, लाहौर के लोगों के बारे में ज्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि वो रास्ता नहीं ठीक बताते, ठीक है। अब बहुत से लोग लाहौर वाले कहेंगे नहीं नहीं मिस ऐसा नहीं, होता भी है बाय द वे, मेरे साथ भी कई दफा ऐसा हो चुका हुआ है कि एक आध दफा कि मैंने किसी से पूछा अच्छा होता क्या है, कि सही पूरी बात नहीं बताते। मैंने एक जगह जो चीजें ड्रॉप करनी है, वो इलाका मेरे लिए नया था, मैंने कहा जी मैं आऊंगी, आपकी कुछ ड्रॉप हुई है चीजें मेरे घर तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी, somebody came from बाहर से आए, उन्होंने कुछ चीजें मेरे घर ड्रॉप कर दी या आप दे आना, ठीक है। मैं चली गई सम मेनी इयर्स बैक। अब मैं वहां पहुंची हूँ, और जिसको मैंने फोन पे बताया कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ ड्रॉप करने, उसने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा जो घर है ना उसके आगे कैनपीज यानी टेंट लगे हुए हैं, 7 वालों के घर में कोई फंक्शन हो रहा है, तो आप उस गली से मत आइएगा, दूसरी से आइएगा, नहीं बताया। आप सोच सकते हैं कि मुझे कितनी परेशानी हुई। इसका मतलब है कि उसका मैसेज बिल्कुल कंप्लीट नहीं था, उसने इस चीज को रियलाइज ही नहीं किया, ना वो कंसिडरेशन उसने ली कि मैं कंसिडरेट फील करूं, और ना ही उसने मैसेज कंप्लीट किया, और मुझे बड़ी ख्वारी हुई। दूसरी जगह से जाती हूँ, दरवाजा उसके गेट्स थे, उस कम्युनिटी के, गेटेड कम्युनिटी थी, वो बंद थे और काफी प्रॉब्लम हुई। तो मैसेज आपका इसी तरह ही कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आपका कस्टमर या आपका कॉलीग या आपका सीनियर आपसे फ्रस्ट्रेटेड ना हो, ठीक है। इसके बाद इसमें 5 Ws हम देखेंगे, ये मैंने आपको नोट्स में दिए हुए, वहां पे देख लेंगे आप कि आपने 5 Ws आपने ये याद कर लेनी है, ये पेपर में आते हैं। एक गलत W लिखेगा, जैसे यहाँ पर आपको हुज नहीं लिखा हुआ ना, हुम नहीं लिखा हुआ ना, तो आपको गलत कर देगा, ठीक है। यहाँ पे विच नहीं लिखा हुआ, तो आप प्लीज इसको याद कर लेना, ठीक है। तो 5 Ws हैं ये वाले, कि इससे पता चला कि कौन खत तेरा है, कौन ले रहा है, व्हाट क्या बात कहनी है, कब काम होना है, कहाँ पे होना है और क्यों होना है, ये 5 Ws इसके अंदर जवाब होंगे, तो आपका मैसेज मुकम्मल हो जाएगा। ये आपने याद कर लेना है। इसके बाद अगला आपका पॉइंट, ये शॉर्ट करके बहुत ज्यादा मैं बता रही हूँ, अभी मैं आपको नोट्स पे लेके जाती हूँ। कंसाइजनेस का मतलब ऐसे है छोटा कर देना। जैसे आप लोगों में से कोई लोग शायद ड्राइंग करते हो, आपको पता होगा ग्राफ के ऊपर हम एक तस्वीर बनाते हैं। मुझे तुम कहो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक छोटा सा पैटर्न है,
मैंने उसको एनलार्ज करना है, तो मैं ग्राफ के ऊपर एनलार्ज करूंगी ना, तो पता क्या होगा, एग्जैक्टली अच्छा हो जाएगा। और अगर बड़े को छोटा करना है तो ग्राफ के ऊपर छोटा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही कंसाइज मैसेजेस जो होते हैं, ये जो मैंने आपको यहाँ पे ये दिया है ना, एक पिक्चर दी है, ये थिसॉरस है, ये आपने याद नहीं करनी, सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया है कंसाइजनेस के लिए। आप संक्सिक्टनेस कहते हैं, सक्सिंक्ट यानी क्लियर और छोटा। एक और वर्ड यहाँ पे ब्रेविटी, शॉर्टनेस, कर्टनेस। आपको अगर कोई लफ्ज ये आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो फॉरगेट इट। ये थिसॉरस क्या होती है, सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स। तो ये मैंने रखी है कंसाइजनेस के क्या मतलब है। तो आपने किसी चीज का मिनिएचर बना दिया, आपने किसी की शॉर्टर वर्जन बना दी, एक बड़ा मैसेज उसको छोटा किया, उसमें तमाम चीजें मौजूद हैं जो एक बड़े मैसेज में थी, तो आपने मैसेज को छोटा किया, लेकिन आपने बाकी 7 सीज में से बाकी 6 सीज को क्या नहीं किया, सेक्रीफाइस नहीं किया। यहां पर लिखा है मैंने फर्स्ट लाइन में, यूजिंग फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, कम से कम वर्ड्स में आपने बात करनी है। और उसके आगे लिखा है कंसाइज मैसेजेस, संक्षिप्त का मतलब है, सक्सिंक्ट कहते हैं छोटा, मुख्तसर, क्लियर और कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट मैसेज देना है। अभी नोट से क्लियर हो जाएगा आपको। ये आपका कंसाइजनेस का हो गया। एक मैंने पिक्चर उठाई, बड़ी फनी है, जिसमें एक जूनियर बेचारा आया होगा, उसने देखो कितनी लंबी लिस्ट तैयार कर दी है, ठीक है, वो एक मेमो यहाँ पे लिख रहा है, और उसको खातून जो पहले से काम करी, आपको लग रहा है कोई एक्सपीरियंस्ड होगी, वो कहती जस्ट से द मीटिंग्स नेक्स्ट ट्यूसडे। भाई इतना बस कह दो कि मीटिंग अगले ट्यूसडे को, तुमने क्या लिख डाला है, इतना बड़ा मेमो लिख डाला है, मेमोरेंडम लिख डाला है। तो ये आप कंसाइजनेस को कहते हैं। और कंसाइजनेस में आपने क्या करना होता है कि जैसे एक बात को बहुत ही लंबा करके आपने बयान करना है। जैसे मुझे याद है कि एक दफा रीडर डाइजेस्ट एक अभी भी आता है, बड़ा जबरदस्त होता है, वैसे सारे लोग नहीं उसको पढ़ सकते, उसके अंदर बड़ी जबरदस्त चीजें होती हैं। तो उसमें एक इंग्लैंड में एक प्रोफेसर थे, उसका बारे में लिखा था कि वो सड़क पे है और वो किसी लेन में गाड़ी खड़ी है, लंबा सिग्नल है, तो अपने साथ वाले जो पर्सन है ना उसको बता रही, एक तो उसमें क्लैरिटी भी नहीं थी उनकी बात में और कंसाइजनेस भी थी। वो उसको कह रहे हैं कि उसको कहते हैं हे यंग मैन या जेंटल मैन, एक ड्राइवर को बुलाते, उसका शीशा नीचे, इसका भी शीशा नीचे, उसको कह रहा है साथ वाली लेन में, उसको कह रहा है यंग मैन या जेंटल मैन करके बुलाता है कि द ट्यूबुलर अपरेटस दैट कंटेन्स एयर इज नो मोर इन इट्स शेप। ये लिखा हुआ था। अब आपको भी मेरी बात समझ नहीं आई होगी। यानी ट्यूबुलर अपरेटस अपरेटस जिसमें कि हवा होती है, वो अपनी शेप में नहीं है। वो उसको सुनकर कहता है, वो जो ड्राइवर है वो कहता है व्हाट, वो फिर उसको रिपीट करता है। तो एक लड़का, चूंकि वो लास्ट लेन में होते हैं, सेकंड लास्ट लेन में प्रोफेसर है, लास्ट लेन में ड्राइवर है, साइड पे फुटपाथ पे एक यंग सा लड़का खड़ा होता है। वो उसको कहता है हे मैन यू गॉट फ्लैट टायर, यानी तुम्हारी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ हुआ है, इसको लगवा लो, उसकी फ्लैट हुई है। तो इतनी लंबी बात करनी, कंसाइज करो, टू दी पॉइंट करो और क्लियर करो ताकि दूसरे को समझ आ जाए। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आ गया कंसाइजनेस के बाद, क्लैरिटी। जैसे कि आपने देखा कि ऐनक लगाई तो सारा क्लियर हो गया विजन। उसके लिए भी कुछ लफ्ज आपको मैंने लिख दिए हैं कि क्लैरिटी में क्या होता है। क्लियरनेस हो गया, ये लफ्ज ले लो, सिंप्लिसिटी हो गया, प्योरिटी हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, ये लफ्ज उठा लो जो तुम्हें अच्छा लगता है। तो ये थिसॉरस में इसके जो है मीनिंग्स दिए हैं मैंने। और क्लैरिटी में बाजू का होता है हम फेमिलियर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो अनफेमिलियर वर्ड्स निकालते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी मैं आपको इसकी मिसाल जो है, अभी मैं आपको स्लाइड जो नोट्स है उसमें ज्यादा बेहतर दे दूंगी। ये लिखे हुए मैंने वहां पर। आफ्टर कहो, सब्सीक्वेंट मीन होता है बाद में आने वाला, आफ्टर कह लो उसकी बजाय। घर की बजाय डोमिसाइल वर्ड यूज किया तुमने। फॉर एग्जाम्पल की जगह ईजी किया। पे कहने की बजाय रिम्यूनरेशन का वर्ड यूज कर लिया तुमने। रिम्यूनरेशन भी एक वर्ड होता है, पेमेंट, पेज जो आपको मिलती है, सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, उसको कहते हैं। इनवॉइस क्या होती है, रसीद को कहते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर पेमेंट कर लो। ये उन केसेस में होता है जब आपको पता चले कि आपका लिसनर जो है या आपका रीडर है उसको नहीं पता, तो क्लैरिटी के लिए हम ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपका लास्ट आज का है करेक्टनेस। आपका मैसेज करेक्ट हो उसके लिए भी मैंने कुछ थिसॉरस डाल दी है। एक्यूरेसी, राइटनेस है, प्रिसीजन है, ट्रूथ है, एग्जैक्टनेस है। जो आपको लफ्ज आते हैं वो देख ले, बाकी भी लफ्ज वही है।
तो ये आपको करेक्टनेस शो करते हैं। अच्छा, करेक्टनेस में कुछ चीजें हैं, ध्यान से समझ लें। करेक्टनेस जो है ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग की, ये बात आपको समझ आएगी। और इसके अलावा आपने यूज द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज लिखा है पहली बुलेट में। राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज होता क्या है मैं भी समझा देती हूँ। चेक एक्यूरेसी, फैक्ट्स एंड फिगर्स। फिगर्स फैक्ट्स अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आपने करेक्ट बताना है कि आज डॉलर का क्या रेट है। उसके बाद मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स, ये बात ये मैंने लिखा आगे इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है IMP मीन इंपॉर्टेंट, ये अक्सर आपको पेपर में आ जाता है। एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स का मतलब है कि आपके लिखने के स्टाइल और जब आप बोल रहे हो उसके स्टाइल ठीक होने चाहिए। राइटिंग मैकेनिक्स में क्या चीज आती है, उसमें एक तो स्पेलिंग आपके आ गए, पंक्चुएशन भी आ गई, ग्रामर भी आ गई। दूसरा आपने ये भी ध्यान करना है किस लफ्ज को हाईलाइट करना है, किसको कैपिटल करना है, कौन सा फॉन्ट साइज यूज करना है, और क्या पॉजेस देने हैं बीच में, किस पैटर्न से लिखना है, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। और इसमें आपने जो आपको राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज बताती हूँ, जो आपके बुक में, ओरिजिनल बुक में लिखी हुई है, वो है एक फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है, एक सब स्टैंडर्ड होती है। यहाँ पर बच्चों को एक कंफ्यूजन आती है, आप जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। फॉर्मल क्या होती है? फॉर्मल लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है जो आपकी लीगल जैसे लैंग्वेज होती है ना, या गवर्नमेंट जो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री से एक डॉक्यूमेंट आया, बहुत ही फॉर्मल लिखा होता है, आम बंदे को समझ नहीं आती। जैसे अभी मैंने प्रोफेसर की आपको बात बताई है कि उसने कहा कि ट्यूबुलर अपरेटस वाली बात, इस तरह की बातें होती है, दैट्स हाईली फॉर्मल। इनफॉर्मल के बारे में कहा जाता है, एक तो इनफॉर्मल होगी कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इट्स लाइक बहुत फॉर्मल तो नहीं है, लेकिन आप जब अपने दोस्त से बात करते हैं, घर वालों से बात करते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ इनफॉर्मल, आप इनफॉर्मली बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बिजनेस की टर्म में कहा जाता है कि इनफॉर्मल को आप कॉन्वर्सेशनल भी कहते हो। अब कॉन्वर्सेशनल क्या होती है? रोजमर्रा की गुफ्तगू आप करते हो, ठीक है, उसको कॉन्वर्सेशनल कहेंगे। जो सबसे ज्यादा डिस्करेज की जाती है वो है सब स्टैंडर्ड। अब ये सब स्टैंडर्ड क्या है, इसके दो नाम आपको आएंगे, एक है स्ट्रीट लैंग्वेज, गली मोहल्ले में बोलने वाली जुबान, और नंबर 2 उसको कहते हैं हम हम जो एक टेक्निकली हम कह सकते हैं जो है कि हम कहते हैं कि स्लैंग मत बोलो, स्लैंग, ठीक है। तो स्लैंग इज सब स्टैंडर्ड। उसके लिए आपने यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दी। फॉर्मल में मैंने लिखा है टॉप गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स, ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। और इनफॉर्मल उसके लिए लिखा है कॉन्वर्सेशनल, लिखा है मैंने वेल नोन, जो आपको भी समझ आए मुझे भी समझ आए। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल दी। अगर तुमने आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्वर्सेशन में कहूंगी, तो आप कहेंगे कितने मोटे मोटे लफ्ज बोल रहा है, ये बोल रही है, तो उसकी जगह आई ज्वाइन द कॉन्वर्सेशन, आई ज्वाइन द कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल। एंडेवर कहते हैं ट्राई करने को, नाइस एंडेवर, इसकी जगह नाइस ट्राई, नाइस एफर्ट, ताकि सबको समझ आ जाए। इसी तरह असर्टन, फाइंड आउट, यूटिलाइज की जगह यूज कह लो, दे इंटेरोगेट इसकी जगह क्वेश्चन कह लो। तो ये आप सादा लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, तो लेस फॉर्मल है, जो कि काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशनल। इसके बाद सब स्टैंडर्ड में एक तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने स्लैंग नहीं बोलनी। मैं यहाँ पर आपको कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकती, आपको खुद पता होगा स्लैंग जो है वो क्या होती है। हाँ, पंजाबी में या उर्दू में या हमारी लैंग्वेज में किसी को ओए क्या कर रहे हो आप नहीं कह सकते। इवन किसी को आप अगर गैदरिंग में हे गाय कह के बुलाते हो, इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड, आपको बता रही हूँ, कभी ना इस्तेमाल करना। और स्पेशली स्पेशली जब आपने एक गैदरिंग ऐसी है जिसमें मिक्स लोग बैठे हैं, थोड़े सीनियर हैं, जूनियर हैं, कॉम्बिनेशन है, वरना लोग आपसे बड़े नाराज हो जाएंगे। और ये मैंने एक वाकया खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक लोग जो है, कुछ हमारी फैमिली में एक शादी थी, तो वो लोग इधर शादी करने आए हुए थे, इस्लामाबाद में शादी हो रही थी वैसे, तो वहां पर बहुत ज्यादा आर्मी के लोग थे वहां पे, मिक्स, कोई रिटायर्ड भी थे। तो अब उनका जो बेटा है उसको मैं भी सरप्राइज हुई थी उस वक्त देखकर, बट वो लड़का बड़ा अच्छा खासा था यहाँ पर जो पाकिस्तान में था, वापस आया, बड़ी अजीबोगरीब उसकी देखा मैंने, सूट उसने ब्रांडेड पहना हुआ था, सूट उसने ब्रांडेड पहना हुआ था, रात का खाना था, लेकिन उसके जो कानों में भी एक बाली नजर आई। और एक और वहां का लड़का था, उसकी मैंने तो आईब्रोज के पास भी एक छोटा सा, छोटी सी बाली से उसने पहनी हुई थी। सो वियर्ड, आई कांट एक्सप्रेस। तो पढ़े लिखे भी बहुत होंगे, बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, लेकिन जो तरीका कार है ना, बहुत ही अजीब था। तो क्या हुआ,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी खाना हो गया है। स्टार्ट बड़ी अच्छी गैदरिंग, उसमें वो खातून थी उनकी मदर जो, उन्होंने कहा कि जाओ बच्चे बता दो। तो वो जाके जब ऐलान करता है, हे गाइस इट्स टाइम फॉर डिनर, ऐसे करके बोलता है स्टाइल से। उसके बाद एक जो वहां के अंकल थे ना, जो कोई रिटायर्ड कोई आर्मी के थे, उन्होंने वो आंटी जो उनकी अम्मी थी उनकी वो धुलाई की, उनसे सीनियर थे काफी। उन्होंने कहा कि तुम ये क्या सिखा के लाई है लड़के को, क्या बना दिया तुमने इसको। तो ये सारा वो खैर किसी की कंट्रोल में नहीं होता। बाहर पेरेंट्स जो है बेचारे बहुत ट्राई भी करते हैं, मगर जब लोग मिंगल करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो आप यू कांट स्टॉप इट। बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक भी रहते हैं लोग, बहुत ही मजहबी भी हो जाते हैं, और कुछ लोग जो है बिल्कुल ही आउट हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी इलाके के। तो ये यहाँ पर उन्होंने वो ये लफ्ज बोला, हे गाय, अब आपको समझ आ गई नहीं बोलना। इसी तरह यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हैं, एंड, कांट हार्डली या कैन नॉट हार्डली कह सकते, एम टू प्रूविंग, एम का वर्ड यूज करते हैं, या एम टू प्रोवाइडिंग, सॉरी लिखा है प्रूविंग, या जैसे एक और मैं आपको बता दी, ये इतने खास आपको नहीं लगेंगे, जिस तरह के मैं आपको बता देती हूँ, जैसे gonna do it, wanna have it, ये सब क्या है, सबस्टैंडर्ड, यू वांट चूज इट। तो यही आपको मैं समझाया। लास्ट स्लाइड फॉर टुडे वो क्या है कि आपने सही फैक्ट्स एंड फिगर्स देने हैं, आपने डेटा चेक करना है, टोटल चेक करने हैं, और किसी पर्सन को कहेंगे इसको एक दफा पढ़ दो ताकि कोई गलती ना मेरी हो, और सारी चीज जो है। और लास्ट चीज लिखी है कि ध्यान करना है कि कोई ऐसी पुरानी चीज उठा के ना मैं दे दूं कि अब फैक्ट्स जो है वो चेंज हो गए हैं और आप जो है वो पुरानी ही चीजें लेके चल रहे हैं। तो आपके चेंज जो है, चेंजेस ओवर टाइम होती रहती हैं, तो आपने ये लोगों को बताना है और देखना है कि कोई चीज गलत तो नहीं चली गई, कस्टमर को गलत तो नहीं चला गया कोई, ठीक है। तो ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे। अब हम नोट्स पे जाते हैं, आपके साथ साथ पढ़ के आपको मैं गाइड करती जाती हूँ, ताकि जब आप इसको पढ़ रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया? जी, ये आपने नोट्स पढ़ने हैं जी। यहाँ पे मैंने लिखा है 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन है आपके, और इसमें आपको नजर आ रहे हैं जी नाम इनके। ये देखिए, फ्रांसिस जे बर्जन का नाम मैंने दे दिया, इन्होंने आपको ये इसका कॉन्सेप्ट दिया था। इनको हम 7 सीज इस तरह भी लिख लेते हैं और 7 का डिजिट लगाकर भी लिख लेते हैं। इसके बाद इनके नाम आपने याद करने, मैंने आपको पहले बता दिया। अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको बाकी बातें भी समझ आ जाएंगी। वो क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 7 सीज का रोड मैप। और ये मैं आपको जो रोड मैप दूंगी, इसको एक किस्म का मैं आपको अब सजेस्ट करूंगी कि आपने इसको रट्टा लगा लेना, आपने याद कर लेना। वो क्यों? आपको यहां से पेपर में जरूर आता है, आप फिर भूल ना जाए। ये असल में जब आप हर्टा मफी की जो ओरिजिनल बुक आपकी है, उसको अगर आप खोलेंगे, इस चैप्टर को मसलन आप खोलते हैं, आपने खोलना नहीं है, ऐसे कंफ्यूज ना हो जाना। उसका जो पहला पेज है ना, जिसे आप एक टाइटल लीफ कहते हैं, उस पर ये सारी कहानी लिखी हुई है। ये वहां से मैंने आपको लिख दी। अब वो कहता है जी, कंप्लीटनेस के लिए अब आपने समझना है, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, सारी जरूरी बातें बता दो। आंसर ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड, मैंने जो सवाल पूछे वो सारे मुझे बताओ। मैं आपके यहाँ स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करने लगा हूँ, मैं कब आऊं और क्या मुझे लेके आना है, मैंने आपसे पूछ लिया, आपने मुझे जवाब दे दिए। आगे लिखा है गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिजायरेबल, जब कोई चीज बहुत जरूरी हो तो एक्स्ट्रा बता दो, ताकि एम्बिगुइटी ना रहे, फ्रस्ट्रेशन ना हो जाए, और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। ये आपने बात याद करनी है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपके पास कंसाइजनेस, मैसेज को शॉर्ट करना है। उसके लिए क्या याद करना है? एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस, एलिमिनेट खत्म कर दो वर्डी एक्सप्रेशन, बहुत लफाजी खत्म कर दो। इंक्लूड ओनली रेलेवेंट मटेरियल, सिर्फ जरूरत की बात लगाओ। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन, और रिडंडेंसी को खत्म करो, अननेसेसरी चीजें निकाल दो, उसके बगैर हमारा गुजारा हो रहा है। इसके बाद ये कंसिडरेशन आज हमने नहीं पढ़ना, कॉन्क्रीट नहीं पढ़ना, मैंने आपको बताया था।
जो आपने पढ़ने हैं बस वही हम आज पढ़ेंगे। और उसके बाद है अगला पॉइंट है क्लैरिटी, ये हम पढ़ेंगे आज। मैं इसलिए तरतीब खराब कर रही हूँ कि आसान आज पढ़ाऊंगी और कल जो है वो उसको मैं क्लियर करूंगी, यहीं से आपको मैं क्लियर करूंगी और यहीं से आपको पढ़ाऊंगी। क्लैरिटी में चूज प्रिसाइज, एग्जैक्ट, कॉन्क्रीट, सॉलिड एंड फेमिलियर वर्ड का इस्तेमाल करोगे तभी क्लियर होगा। कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ, इस पे हम बात अभी करेंगे कि आपने सेंटेंस बनाया इफेक्टिव हो, पैराग्राफ बनाया इफेक्टिव हो। इसका क्या मतलब है? सेंटेंस की लेंथ इतनी ना बढ़ा देना कि बात ही कहीं गुम हो जाए, पैराग्राफ इतना बड़ा ना कर देना कि उसमें एक से ज्यादा थॉट्स आ जाए। पहले तुम मुझे बता रहे हो ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, भाई क्या कर लो, इसकी डिटेल तो बताओ, ये तरतीब तो बताओ। दिस इज समथिंग रॉन्ग यू डू। वन पैराग्राफ जो होता है ना, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि एक पैराग्राफ जो है उसमें यूनिटी का कॉन्सेप्ट होता है, आपने यूनिटी लेके चलनी होती है। उसमें अक्सर पहला सेंटेंस पैराग्राफ का जो होता है उसे हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस, जो कि असल में टॉपिक को लेकर आपको समझाता है कि अब हम क्या करने वाले। पैराग्राफ में आगे डिटेल पूरी उसके बारे में डिस्कशन होती है और उसका लास्ट जो सेंटेंस होता है उसे कहते हैं कंक्लूजन, वो कंक्लूड करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर पैराग्राफ अपने तौर पर एक मुकम्मल कहानी है, एक मुकम्मल एंटिटी है। ठीक है, तो हमने आज हम ये देखेंगे हमने क्या करना है इसके ऊपर। और आपके पास नेक्स्ट हमें कर्टसी कल पढ़ाऊंगी, करेक्टनेस बता रही हूँ। करेक्टनेस है यूज द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, अभी बताया। चेक एक्यूरेसी फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड वर्ड्स, अभी बताया। मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स, ये भी अभी मैंने बता दिया। तो ये मैंने आपको ये क्लियर बता दिया है। अब हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। कंप्लीटनेस के लिए अब मैंने बहुत सी जगहों से मटेरियल कट एंड पेस्ट करके बहुत ही जो आपके लिए जरूरी है वो रखा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो अगर आपका दिल फिर भी चाहे तो पीडीएफ कैप्लन में दोबारा से एक दफा दिल चाहे तो उठा के पढ़ लीजिएगा, उसमें एग्जांपल्स होती हैं, वो भी मैं अभी चेक कर लेती हूँ क्या क्या है, मैं आपको खुद गाइड कर दूंगी कि आप उसमें से क्या देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीटनेस में मैंने आपको डिक्शनरी डेफिनेशन दी है, हैविंग ऑल नेसेसरी और एप्रोप्रिएट पार्ट्स, रट्टा लगाने की इसकी जरूरत नहीं है, समझने के लिए दिया है आपको। उसके बाद लिखा है कि योर मैसेज जो है इज कंप्लीट व्हेन इट कंटेन्स ऑल फैक्ट्स द रीडर और लिसनर नीड्स फॉर द रिएक्शन यू डिजायर। इस पूरी बात का मतलब यह है कि जो तुम उनसे करवाना चाह रहे हो, रिएक्शन का मतलब नहीं है कि तुमने ऐसी बात कर दी कि वो तुम्हारे ऊपर ही गुस्सा करना शुरू कर दे या कोई बात पे शाउट करे, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो तुम उससे करवाना चाह रहे हो उसको समझ आ जाए। ठीक है, और आपने यहाँ पे लिखा है कि तमाम लोगों के दिमागों में अपने अपने फिल्टर लगे होते हैं, किसी को कोई बात समझ आती है, किसी को कोई बात समझ आती है। लोगों को अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक तुम्हें पूरी बात उनको बतानी है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। और इससे अगला पैराग्राफ है उसमें लिखा है एवरी कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट एंड एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब है पूरी, यानी मुकम्मल, मौजू, मुनासिब होनी चाहिए, जिसमें के जैसे मोमेंट मैंने बड़ा किया पेज, आपको लेके जाती हूँ वहां पे जी। मौजू होनी चाहिए आपकी जो है बात, और ताकि लोग जो है वो उसी चीज को में मिसअंडरस्टैंडिंग ना आ जाए उनको, या एक्शन डिले ना हो जाए कि बात समझ ही नहीं आई। ठीक हो गया, और उसको पूरी जो चीजें आप दें, ये कंप्लीट मैसेजेस हैं। इसमें आपने याद अब ये करना है 5 Ws, मैंने आपको बता दिया, इनके नाम याद कर लेना। और इसमें फिर आगे लिखा है कंप्लीट मैसेज ऑफर्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स। इसमें क्या बेनिफिट्स हैं? डिजायर्ड रिजल्ट आपके आएंगे, ये लिखा हुआ है पहली लाइन में, पहली बुलेट में। विदाउट एक्सटर्नल एडिशनल मैसेज नहीं आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद ये है लोग आपकी जो है दे कैन डू बेटर जॉब ऑफ बिल्डिंग गुडविल, यानी आप अगर पूरी इंफॉर्मेशन देंगे ना, मिसाल के तौर पर तुम एक मशीन खरीदते हो, ठीक है, और मशीन के साथ एक मैनुअल आता है कि मशीन कैसे चलेगी, इसको कैसे जोड़ोगे, इसके कैसे पार्ट्स लगाओगे। अगर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तुम्हें कहना है कि ये पार्ट बी, इसमें तस्वीर बनी हुई है, बताया नहीं कि क्या करेगा, इसे कहाँ लगाऊं, आप गलत लगा के ऑन कर ले तो आपकी जो है आपका जो है कट भी कर सकती है, कहीं पे खराब हो सकती है। तो आपको क्या है, पूरा मैसेज चाहिए। कंप्लीट मैसेज कैन हेल्प अवॉइड कॉस्टली लॉ सूट, ये बात मर्फी में लिखी है, किताब में लिखी है।
उसमें हर्टा मफी ने लिखा है एवर्ट कॉस्टली लॉस रूट का पता क्या मतलब होता है, मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब है कि जब तुम एक बिजनेस करते हो, अगर तुम्हारा मैसेज पूरा नहीं गया तो तुम्हारा जो कंपेटिटर है या जो बंदा जिससे तुम बिजनेस डील कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर केस कर सकता है कि जी मुझे तो पूरी खबर नहीं बताई थी, मुझे तो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, मुझे बताया ही नहीं गया था। अब जैसे आपको मैंने टिकट की मिसाल दी, मुझे पूरी बात बताओ, आजकल कितनी महंगी टिकट हो गई है, ठीक है, ट्रिपल और बल्कि 4 टाइम्स महंगी है अगर आपने जाना है कहीं पे। तो अभी आपका जो है जो आपका एजेंट है उसको पूरी पिक्चर्स आपको बतानी चाहिए कि भाई क्या करो, किस तरह टिकट लो, किस तरह तुम्हें अगर ट्रेवल करना है तो तुम कैसी फ्लाइट लोगे, तो इसलिए आपको वो बताए। इसके बाद है कॉस्ट आर मिनिमाइज लिखा है, इसका मतलब है टाइम भी बच जाता है, पैसे भी, क्योंकि आपने आपको उसके बाद यहाँ पे लिखा है वर्ड सब्सिक्वेंट कम्युनिकेशन, बाद में आने वाली कम्युनिकेशन तुम्हें नहीं करनी पड़ती। सब्सिक्वेंट मीन बाद में, एक बंदा है पूरी बात नहीं वापस आएगा, सर आपने ये तो बताया नहीं, ओ भाई फला जगह से साइन करा के जाओ, बताया तो है तुम्हें, नहीं क्लियर हुआ था या नहीं आपने पूरा बताया था, मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैंने पूरी बात नहीं की थी। तो दिस इज व्हाट यू डू, यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ जाएगी। और कंप्लीट मैसेजेस जो है अगला पॉइंट लिखा है मोर लाइकली टू परसुएड द रेसिपिएंट, यानी कन्विंसिंग होते हैं, आप लोगों को परसुएड करना, कन्विंस करते हैं, लोग इंप्रेस हो जाएंगे कि इसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। और लास्ट इसका यहाँ पे पॉइंट है असिस्टिंग बेटर डिसीजन मेकिंग, इससे आपका बॉस, आपका कॉलीग जब पूरी इंफॉर्मेशन है, तुम्हें टिकट की इंफॉर्मेशन पूरी मिली, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी, तुम बेहतर डिसाइड करोगे, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक मिसाल दी है कि मैसेज अगर कंप्लीट नहीं है, जैसे कि लिखा है कि व्हाट इज इज मीटिंग अबाउट, मीटिंग क्या है, किस तरह होगी, तो कब होगी, पूरा नहीं बताया तो नहीं समझ आएगी। इसके बाद यहाँ पर ना मैंने ब्लॉग में जो चीजें दी है वो आप खुद पढ़ेंगे, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये आपको इंफॉर्मेशन दी, पढ़ना जरूरी है समझने के लिए कि यहाँ पर एक किसी पर्सन ने दूसरे को ईमेल की है और हाजरा ने लैला को, और आप देखिएगा कि क्या प्रॉब्लम आई है, मैसेज कंप्लीट नहीं था, आप इसे प्लीज जरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा भी पेपर में सवाल आते हैं, जो भी आप करोगे ना, आपको 1000 भी दिए ना जो सवाल, उसमें भी चैप्टर 3 के अंदर ये सारे सवाल पढ़े हैं। आपको मैंने चैप्टर 3 के अंदर ही जो आपको सीए की बुक है उसमें ये सवाल बहुत ज्यादा पढ़े हैं, आप वहां से करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको बताया जाएगा, एक सिनेरियो दिया जाएगा और कहेगा नीचे एक सिनेरियो है पूरी सिचुएशन, उसके बाद नीचे सवाल उसको ठीक करेगा और कहेगा कि मैंने इस वाली स्टेटमेंट में क्या अप्लाई किया, आप कहेंगे जी आपने कंप्लीट कर दी है, आपने कंसाइज कर दी है, वो आपने जवाब देने होंगे, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट होगा तो आप क्लियर जवाब देंगे, और ये जब तक ये 7 C's नहीं, वो जो एमसीक्यूज नहीं करोगे ना तो समझ नहीं आने वाली, लेकिन स्टार्ट कर लो थोड़ा थोड़ा पढ़ना ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद अगला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कंसाइजनेस, इसके लिए मैंने डिक्शनरी मीनिंग आपको बता दिए। कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है, इसमें गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली इन अ फ्यू वर्ड्स, ब्रीफ बट कॉम्प्रिहेंसिव, छोटा लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जो कि सॉलिड हो, जो तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। और उसमें ये मैंने आपको डेफिनेशन इसकी लिख के दी है, हाउ टू से, you have to say in the fewest possible words without sacrificing other C qualities, आपने जो कहना है कहो, बाकी 7 C's की तबाही ना मचा देना, उनको तबाह ना कर देना, कंसाइज करने के चक्कर में ना क्लियर रहा, ना कंप्लीट रहा, ना ही तमीज रह गई, ना कंसिडरेट रहा, ना कर्टिसी रही, तो आपने ध्यान करना है, ये आपने इसमें देखना है। तो आगे लिखा है कंसाइज मैसेजेस इज कंप्लीट विदाउट बीइंग वर्डी, यहाँ पर बहुत सारे अल्फाज जो आपको मैंने लिखे हैं वो हर्टा मफी की ओरिजिनल बुक से लिखे हैं, वो आपको हेल्प करेंगे आपको आंसर देने में जब आप एमसीक्यूज पढ़ोगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कंसाइज मैसेज जो है सेंडर और रिसीवर के लिए सेव्स टाइम एंड एक्सपेंस, यहाँ पर वहां पे भी लिखा है कॉस्ट मिनिमाइज होती है, लेकिन यहाँ पर पीछे वाले में भी, लेकिन कभी भी आपको मिलता जुलता सवाल नहीं आएगा, एमसीक्यूज करोगे समझ आ जाएगी। तो कंसाइज मैसेज में टाइम वेस्ट नहीं होता, टू द पॉइंट बात हो जाती है। कंसाइज मैसेजेस, अगला ये पॉइंट पढ़िए, कंट्रीब्यूट्स टू एम्फेसिस, इसका मतलब है कि जब तुम एक मुख्तसर बात करते हो तो वो बड़ी एम्फेसिस वाली होती है, ठीक है। और उसमें किताब ने ये भी लिखा है, इसमें यू व्यू
यू व्यू का मतलब पता है क्या होता है कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, इसे यू एटीट्यूड भी कहते हैं। इसमें दूसरों का ख्याल करना, दूसरों को लेके चलना। अगर आप दूसरों को इग्नोर कर देंगे, यानी उसकी नीड क्या है, तो आप क्या करेंगे, फालतू चीजें उसमें आपकी आ जाएंगी। तो आप इसका ध्यान करेंगे। आपने रिस्पेक्ट का ख्याल करना है, सारा आप पढ़ेंगे, आसान है बाकी लिखा हुआ। और आपने कंसाइज मैसेजेस जो है वो आपको मैंने बता दिया। अभी कुछ चीजें एक आध रिपीट भी होंगी, जब मैं आपको प्रूफ कर रीड करके भेजूंगी ना तो रेपिटेशन निकल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैंने बहुत सी जगहों से कट पेस्ट करके और कुछ ऐड खुद करती। इसके बाद यहाँ पर है फॉर अचीविंग कंसाइजनेस, आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल जो है नहीं करना, कोशिश करें आप एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल करें। यहाँ पर कुछ मिसालें दी हुई हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा है an analysis of last quarter sales can be found in appendix B of this report। इसकी जगह ये क्यों नहीं कहते can be found, इसकी जगह ये क्यों नहीं कहते you will find analysis। तो आपका क्या होगा, आपकी ये एग्जैक्ट एक्टिव पैसिव नहीं होती, जैसे कि आपने इंग्लिश में सीखी होगी। इसका मतलब है काइंड ऑफ, यानी आप चीजों को घुमाकर करने की बजाय टू द पॉइंट करें। इसके बाद वर्डी एक्सप्रेशन ना करें, ब्रेविटी, शॉर्ट करें, रिपीट ना करें अननेसेसरी वर्ड, स्टिक टू द पॉइंट, डिलीट इररेलेवेंट, अवॉइड लॉन्ग इंट्रोडक्टरी अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन करें। यहाँ पर मैंने पुट एक्शन इन द वर्ब में अभी जो मैंने आपको बताया एक्शन इन द वर्ब, ये आपको पेपर में आ सकता है। पुट एक्शन इन द वर्ब का मतलब है एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करो और जो काम किसी ने किया है उसको हाईलाइट करो। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसे एक्शन, वी मेक यूज ऑफ न्यू प्रोसीजर, ये एक्शन था, कितना गलत आपने बोला। आप ये क्यों नहीं कह देते कि वी यूज न्यू प्रोसीजर, ये क्यों कहते हो वी मेक यूज ऑफ न्यू प्रोसीजर। ठीक है, कितना यानी घुमा के बात कर रहे हो। फिर आगे लिखा है, अगला पॉइंट है इट इज आवर होप दैट द कंपनी वुड अचीव इट्स टारगेट्स। अब ये कितना लंबा है, इसको छोटा करो, वी होप कह लो, इट इज आवर होप की जगह वी होप कर लो, बाकी आपका ठीक था। आगे है एक्स एज एन इंडिकेशन दैट वाई वाज सक्सेसफुल इनिशिएटिव, मिसाल के तौर पर इसकी जगह कहो इज एन इंडिकेशन की जगह एक्स इंडिकेट्स, ये कर लो। ठीक है, और इसी तरह एक्स प्रोवाइड्स अ जस्टिफिकेशन फॉर वाई, ये क्यों नहीं कहते एक्स जस्टिफाइज वाई। तो आप इसको आराम से जब पढ़ोगे तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल्स दी हैं, ये भी आप पढ़ लेना। आपके फ्रेजेस बहुत लंबे लंबे लेफ्ट साइड पे हैं, राइट साइड पे इसको छोटा कर दिया है। आप समझ लें कि इसका बदल है यहाँ पर, ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूट है राइट साइड पे। ये आपको जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं ये आपको पेपर में आ सकती है, क्योंकि ये आपकी हर्टा मफी में इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा आपको जो सीए की बुक है इसमें भी उसका इस्तेमाल है कि वो पूछेगा अच्छा मैंने ये कर दिया है तो मैंने क्या अप्लाई किया, आप कहेंगे कंसाइजनेस। इसके बाद एक और एग्जांपल है, ये आपने खुद रीड करनी है, ब्लॉक वाली एक एग्जांपल है, ये पूरी पढ़ना और उसका आंसर जो उसकी करेक्शन है वो नीचे है, आप पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है क्लैरिटी। क्लियर आपको बताया था, ये आज हमने पढ़ना है। क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, ये उसका मतलब है, ये आपको मैंने डेफिनेशन बताई है इसकी। इसके बाद ये इसकी यानी मीनिंग बताएं। ये डेफिनेशन है जो ये लिखी है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये लिखा है जी, गेटिंग द मीनिंग फ्रॉम योर हेड इनटू द हेड ऑफ योर रीडर। आपने अपने दिमाग से उठाया, जो कुछ बताना है उसके दिमाग में प्रिंट कर दो, जैसे किसी को स्कैन किया जाता है चीज को, या किसी चीज की फैक्ट्स भेजी जाती है, बिल्कुल ऐसे आप एक्यूरेटली क्लियरली उसको बताएं कि क्या चाहिए। और उसके लिए कहता है कि ये बात इतनी आसान नहीं है, आपको बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा ताकि आप एग्जैक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करें ताकि क्लियर हो जाए। उसके लिए क्या करो, सिंपल एग्जैक्ट कॉन्क्रीट वर्ड्स का इस्तेमाल करो, अपना पर्पस क्लियर बताओ, इफेक्टिव सेंटेंसेस पैराग्राफ बताओ। इसके लिए लेंथ लिखा है कि सेंटेंस आपका 15 से 20 वर्ड्स का होगा, कुछ जगहों पे 17 से 20 भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको पेपर में जब आएगा तो वो ज्यादा फर्क करके बताएगा। लेकिन आपको ये जो सवाल मैंने दिए बता रही हूँ आपको, ये आपको 1000 BC क्वेश्चन के अंदर इस तरह के सवाल सारे पड़े हैं, वो आप करना शुरू कर दें तो आपको समझ आ जाएगी। और कल जब आपका पूरा हो जाएगा तो आप अगले दिनों में आप सारे सवाल कर लेंगे, जो कि असल में आपकी सक्सेस जो है वहां पे आप समझ लें कि स्टोरी वहीं पड़ी हुई है आपकी।
कोहेरेंस होनी चाहिए, आपस में कंसिस्टेंसी यानी राब्ता होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, एम्फेसिस देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जो जो बात कहनी है उसको एम्फेसाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद है क्लियर मैसेजेस जो है इजी हो जाते हैं इंटरप्रेट करना, ये पॉइंट है जिसपे मेरा कर्सर है। इसके बाद है क्लियर मैसेजेस स्टिमुलेट द रेसिपिएंट इनटू एक्शन। इसका मतलब क्या है कि क्लियर मैसेजेस जो हैं वो रेसिपिएंट रिसीवर को एक्शन करने पर यानी स्टिमुलेट कर देते हैं, उस पर उसको प्रोवोक कर देते हैं, उस पर उसको लगा देते हैं। ये जो अगले पॉइंट्स हैं ये भी बुलेट्स ही हैं। सिलेक्ट वर्ड्स दैट हैव हाई सेंस ऑफ एप्रोप्रिएटनेस, ऑप्ट फॉर फेमिलियर वर्ड्स यानी फेमिलियर वर्ड्स का इस्तेमाल करो, दैट इज नॉट प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस का मतलब होता है बनावटी, बनावटी लफ्जों का इस्तेमाल ना करो, यानी किसी को बात ही समझ ना आए, क्या फायदा ऐसी लैंग्वेज का, ठीक है। उसके बाद है इसमें मेन आइडिया एक सेंटेंस में एक से ज्यादा मत दो। और इसके बाद है अरेंज वर्ड्स, आगे लिखा है कि मेन आइडिया पहले आ जाए ताकि बात समझ में आ जाए। यूज इंग्लिश रादर देन फॉरेन इक्विवेलेंट, यानी जो फॉरेन वर्ड्स होते हैं। मैं आपको इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताती हूँ, अभी जरा मेरे साथ रहिएगा। और आगे लिखा है फेमिलियर वर्ड यूज करो, लैटिन टर्म्स यूज ना करो। हमें अक्सर लैटिन टर्म्स अभी भी हमारे यूज में हैं कुछ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक तो फेमिलियर वर्ड्स है, अभी मैंने आपको बताया आफ्टर, अभी मैंने स्लाइड पे दिखाया था, आफ्टर यूज करो सब्सिक्वेंट ना। आफ्टर वर्ड आने वाली इंफॉर्मेशन की जगह सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन कहोगे तो बेचारे किसी आम आदमी को समझ नहीं आने वाली। ईजी लिखोगे, तुम कहोगे क्यों नहीं मिस, हमें तो समझ आती है, हम तो बचपन से ईजी लिखते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो ये चूंकि वर्ड लैटिन है, इसके कोई और इसका जो है यानी इसका मतलब कुछ और, यानी वर्ड कुछ और है, लेकिन हम इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप कहते हैं, बात आपकी ठीक है। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप किसी और कंट्री में जाते हो या किसी और शहर के लोग आते हैं, यू नेवर नो किस तरह का उन्होंने सिलेबस अपना पढ़ा है। उनकी बुक्स जो लिखी गई थी, जिस ऑथर ने लिखी, अप्रूव्ड बुक्स थी, उसमें शायद इन लफ्जों का इस्तेमाल नहीं था, इसलिए उनको नहीं आता। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाएगा, अंडरलाइन करेगा, कहेगा ये क्या है, ठीक है। और इसी तरह कुछ आगे बढ़े, पे रेम्यूनरेशन ना इस्तेमाल करो, आपको पे मिलेगी, वेजेस मिलेंगे। एक और लफ्ज है वो तो हमारे बिल्कुल ही इस्तेमाल में, सिरका लैटिन वर्ड है, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम नहीं ज्यादा करते, अबाउट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप तो ये कहेंगे ना सिरका, तो ये हल उर्दू में जब लिखते हैं तो उसका मतलब तो होता है विनेगर, लेकिन ये कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, ये वैसे मिसाल मैंने दी है, बहुत कम जगहों पे होता है। होम इस्तेमाल करो, डोमिसाइल, इनवॉइस इस्तेमाल करो, अभी मैंने बताया। आपने जी इनवॉइस ले ली है, यानी आपने रिसीव जिसे कहते हैं वो ले ली है, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट कह लो इसे, ठीक है, प्रूफ ऑफ पेमेंट कह लो, कुछ भी कह लो। अब मैं आपको कहानी जो सुनाने लगी हूँ, जो आपको मैंने बताया इंटरेस्टिंग बात है, वो है सो ऑन, कहा करो, एटसेट्रा ना कहा करो। अच्छा, आजकल के बच्चे, जो यंग बच्चे बिल्कुल हैं, वो क्या करते हैं, एटसेट्रा नहीं कहते। स्पेशली लड़कियों को आदत है, वो पता है कहती है ब्ला ब्ला, ये ले आओ, ये ले आओ, ये कर लिया, ब्ला ब्ला। ये ब्ला ब्ला क्या है, ये एटसेट्रा ही है, ठीक है। लेकिन एटसेट्रा की स्टोरी ये है कि आपको मैं हमेशा बताया करती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये है कि एक पुरानी मूवी है, लेकिन आप चाहें तो अभी भी देख सकते हैं। मूवी का नाम था किंग एंड आई, किंग एंड आई, ठीक है। वैसे एक और बहुत खूबसूरत मूवी है, अगर आपको वीकेंड पे टाइम मिले, मैं मूवी जरूर बच्चों को बताया करती हूँ, लोगों को बताया करती हूँ, अपने ट्रेनर्स, ट्रेनिंग जो ट्रेनी होते हैं उनको बताया करती हूँ। एक है किंग्स स्पीच, आप में से हो सकता है लोगों ने देखी, इट्स अ वंडरफुल मूवी, आपको जरूर देखनी चाहिए। तो किंग एंड आई मूवी थी, एक कैरेक्टर हुआ करता था, युल ब्राइनर उसका नाम था, मशहूर उस जमाने में। जैसे कि आपके अभी जो बाद में बहुत जो लोग मशहूर हैं, जिसमें जैसे रॉबर्ट डनैरो बहुत मशहूर है, ठीक है। अब मैं मूवीज की बातें करने लग गई हूँ, तो कुछ लोग हैं बहुत फेमिलियर हो जाते हैं ना, मेल गिब्सन या और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम है। तो आपको भी आपकी वोकैबुलरी में कुछ और शायद नाम होंगे, शायद आप एक्शन मूवीज ज्यादा देखते हो, मैं बहुत ज्यादा एक्शन मूवीज नहीं देखती। तो अयुल ब्राइनर जो था ना, वो हुआ ये कि वो एक मूवी में आया और उसने वहां पे कैरेक्टर था उसका, जिसमें उसने अपने बालों को शेव किया हुआ था, सर के बाल जो थे वो बिल्कुल नहीं थे। लोगों ने उसकी इस गेटअप को इतना पसंद किया कि उसके बाद जितनी भी मूवीज में वो आया, वो क्या था, उसका सर जो है वो साफ होता था, यानी शेव्ड होता था। अब एक मूवी है किंग एंड आई, उसमें वो फ्रेंच किंग बना है, फ्रांस का किंग। आपको पता है फ्रांस की लैंग्वेज जो है
उसे स्वीटेस्ट लैंग्वेज कहते हैं। पता क्यों कहते हैं स्वीटेस्ट लैंग्वेज? क्योंकि इसमें हार्श साउंड्स नहीं है। ये हार्श साउंड क्या होती है? पता क्या होती है? ड, ट साउंड्स। हमारी लैंग्वेज में ड ट है, हम बोलते हैं ना, हम कहते हैं जी। अब जैसे और अरबी में भी प साउंड नहीं है, ठीक है, ड़ नहीं है, ड नहीं है, ट नहीं है, कोई साउंड नहीं है। तो जिन लैंग्वेजेस में ये साउंड्स नहीं होती उन्हें स्वीट लैंग्वेजेस कहा जाता है, और कहा जाता है कि फ्रेंच इज द स्वीटेस्ट लैंग्वेज बिकॉज इट्स नॉट कंटेनिंग हार्श साउंड्स। अच्छा, अब आप बोलते हैं, जैसे मैं अगर आपको जैसे वो मुझे याद है कि एक था, आई फॉरगॉट एक नेम, एक सीजन लगा करते थे जिसमें दो लड़के थे सीजन्स में, जैसे फ्रेंड्स एक सीजन था, इसी तरह एक और भी सीजन था, मैं उसका नाम अब भूल गई इस वक्त। तो उसमें भी वो था जिसमें एक फ्रेंच होता है, वो बोलता है, वो कैसे बोलता है? वो कहता है आई एम ट्राइंग टू गेट इट। ठीक है, वो ये नहीं कह सकता आई एम ट्राइंग टू गेट इट, वो कहता है आई एम ट्राइंग टू गेट इट। तो फ्रेंच किंग जो है ना, वो एक इंग्लिश लेडी को एज अ टीचर हायर करता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब बच्चे भी उसके काफी ज्यादा है, वो दिखाया है कि एक जगह पढ़ाती है, कई दफा सीन दिखाते हैं। अब वो एक जगह पढ़ा रही होती है तो कई दफा पास से गुजरता भी है कि वो रिस्पेक्ट भी करता है कि टीचर है जो कि लैंग्वेज पढ़ा रही है। वो कहीं उनको आम जिंदगी से चीजें सिखा रही होती है, और उसको फ्रूट नेम्स, वेजिटेबल नेम्स सिखा रही होती है, छोटे छोटे बच्चे। वहां पे उनको वो कहती है कि इफ यू गो टू मार्केट एंड यू बाय सम फ्रूट्स, तो फ्रूट्स के नाम बताती है। उसे कहती है यू पिक, तस्वीरें में साथ शायद दिखा रही होती है, यू पिक अ बनाना, एन एप्पल, एन ऑरेंज, अ स्ट्रॉबेरी, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो बोलती है। अब किंग गुजरता गुजरता ना रुक जाता है, वापस आता है। वो उसको कहता है, उसको टीचर को कहता है व्हाट डिड यू से, कि व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा? वो घबरा जाती है, उसने कहा शायद मैंने कोई ऐसी नेगेटिव बात कर दी जो कि इसके बच्चों को नहीं बतानी थी। वो कहता है सॉरी, मैंने नहीं नहीं कुछ नहीं कहा। वो उसको कहता है नहीं नहीं तुम रिलैक्स करो, बताओ क्या कहा। उसको बताती है कि मैंने को ये फ्रूट नेम बता रही थी, इस तरह इस तरह। कहता है नहीं, तुम दोबारा से कहो जिस तरह के तुमने इसको कहा था। वो एक दफा जब कहती है ना कि फ्रूट वेजिटेबल, यानी वो स्ट्रॉबेरी डालो, स्ट्रॉबेरी रुक जाती है। वो कहता है नो, यू डिड समथिंग एल्स, यू सेड समथिंग एल्स। वो कहती है अच्छा। फिर वो जब कहती है ना एटसेट्रा एटसेट्रा, वो वहीं पे कहता है यस दिस। वो उससे पूछता है ये क्या है? वो उसको मतलब बताती है कि ये वगैरह वगैरह, जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं, या सो ऑन, या ब्ला ब्ला, ये सब कुछ है। अब वो इस लफ्ज को सीख लेता है और उसको बहुत अच्छा लगता है। अब दिखाते हैं कि जहां भी वो जाता है, जहां भी लोगों से बातें करता है, डेलीगेशन आए हैं, अपने दरबार में बैठा हुआ है, वहां पर भी कहेगा वी आर वर्किंग ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ द कंट्री, वी विल मेक ब्रिजेस, और वो जो भी रोड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, हर एक में कहता है। तो आपको फनी भी लगेगा ये बात। मेरे मैं कहने का मतलब ये सारा था, मैं थोड़ा सा हटकर आपसे बात इसलिए भी करती हूँ कि अगर मैं पढ़ाती ही चली जाऊं तो लोग ट्यून आउट हो जाते हैं। वो कहते हैं बस करें, बहुत पढ़ लिया आपने। तो ये टॉपिक चूंकि मैंने खत्म कराना है आपको, तो इसलिए मैंने कहा मैं एक स्टोरी आपको सुना देती हूँ इससे रिलेटेड, ताकि आपको याद रहे कि अगर तुम किसी चाइनीज से तुम्हारी मुलाकात हो जाए और तुम उसको एटसेट्रा कहोगे तो उसको नहीं समझ आने वाला, वो ये ना समझे कि मुझे अब्यूज कर रहा है शायद। तो इसलिए खुदा के लिए वो अल्फाज ईजी एटसेट्रा या ऐसे लफ्ज जिनकी लोगों को समझ ना आए, इनवॉइस मत इस्तेमाल करो, रिम्यूनरेशन सीधे सीधे बोलो, ठीक है। ये आपको क्लैरिटी में बात समझा दी हमने। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास क्या आता है कि ये इलस्ट्रेशन आपने पढ़नी है, ये आगे लिखी हुई इलस्ट्रेशन, जहां इसको मैं ब्लॉक कर दूंगी कि आपने क्या इसमें पढ़ना है। एग्जाम्पल दी है और फिर क्लियर करके बात की है, नीचे आप समझ लीजिएगा। इसकी करेक्शन हुई हुई है और सेकंड स्टेटमेंट लिखा है कि उसमें क्या किया है, करेक्शन हुई है। आज का लास्ट पॉइंट है वो है करेक्टनेस। आपने मैसेजेस करेक्ट देनी है। अब यहाँ पे लिखा है सबसे पहले कि एट द कोर ऑफ करेक्टनेस इज प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। ये मैंने आपको पहले बता दिया, इज अ काइंड ऑफ डेफिनेशन। आपने लिखा है यहाँ पर कि अगर कोई एरर आ जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा कि आपने एक मैसेज लिखा, उसमें लिखा है कि 10,000 एनवेलप्स जो हैं वो आप कर लो, तो उसकी जगह पे अगर आप सोचें हाँ कि आप उसकी जगह 100,000 अगर कह देते हो, या आपका एक और जीरो लग जाता है
तो कितनी बड़ी मिस्टेक आ जाएगी। तो इस चीज का ध्यान करेंगे हम। उसके लिए यहाँ पे लिखा है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, use appropriate and correct language. Remember that business communication is much more informal and uses simpler words than legal contracts. तो आपने क्या समझे वो फॉर्मल लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स और बहुत ही एकेडमिक पेपर जो होते हैं, जैसे कि आपका कोई प्रोस्पेक्टस बनी होती है तो वो आपको बड़ी ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में मिलती है, तो उसकी जगह आप इनफॉर्मल यानी कॉन्वर्सेशनल इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद है अवॉइड यूजिंग सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको कहा है स्लैंग इस्तेमाल नहीं करनी। और यहाँ पे उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्शन आपको दिखाई है, इज नॉट कहो, इजंट मत कहो, नजर आ रहा है ना आपको, इज नॉट कहो, इजंट ना कहो। इसी तरह आपको नीचे वाले वर्ड्स भी नजर आ रही हैं, शुडंट ना कहो, शुड नॉट कहो, विल नॉट कहो, वॉन्ट ना कहो। तो ये आपको हो सकता है पेपर में ये पूछ ले, क्योंकि ये ओरिजिनल बुक से है। इसके बाद है चेक द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, यानी प्रिसाइज टू द पॉइंट आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। वेरीफाई न्यूमेरिकल डेटा, आप न्यूमेरिकल जो डेटा है उसको देखिए कि कहीं गलत तो नहीं हो गई। डबल चेक टोटल, आज किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से कहीं वो इसको पढ़ दे। इफ द कम्युनिकेशन इज करेक्ट इट बूस्ट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ रिसिपिएंट। देखो अगर इंफॉर्मेशन आप करेक्ट आती है, जब भी आपको रिपोर्ट लिखते हैं, जब भी कोई ईमेल देते हैं, आपके बॉस को पता है कि इसकी मैसेज में गलती नहीं हो सकती, ये हमेशा करेक्ट होती है। तो इससे क्या होगा, आपका रिसीवर में कॉन्फिडेंस होगा। और यहाँ तक कि आपको पता है बात अगर ऐसा होता है कि आप कोई चीज प्रिपेयर करते हैं, अपने बॉस के लिए प्रिपेयर किया आपने चीज, वो उसने पकड़ ली, उसको आप पर फेथ है, आपको ट्रस्ट है कि भाई वो आप ठीक देंगे, तो पता है आप क्या करेंगे, आपकी चीज रख लेगा। से वो मीटिंग में बैठा है, उसको टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का, मीटिंग में पकड़ के वो जब सबसे पढ़ना शुरू करेगा, अगर वो गलत हुई तो क्या बनेगा, सोचिए, एम्बैरेसमेंट उसको तो होगी होगी, आप तो फारिग हो जाएंगे। तो इसलिए हमें करेक्टनेस का ख्याल करना है। और ये भी है, करेक्ट मैसेजेस मोर इम्पैक्टफुल होते हैं, यानी बेहतरीन लोगों पे असर डालते हैं बहुत ज्यादा, यानी आपको पता होता है कि ये बात जो है बिल्कुल ही करेक्ट लिखी हुई है। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ जिस तरह के पेपर में आपको आ सकती है। वो अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है और कहता है इसमें क्या है, क्या 7 C's की कौन सी गलती है, तो आपने कहना है जी इसमें गौर करेंगे तो आप कहेंगे ये करेक्टनेस की गलती है। वो कैसे लिखा हुआ है, देखिए गौर से, मोस्ट आउटलेट्स, आउटलेट्स के साथ अपॉस्ट्रोफी लगी हुई है, क्यों नहीं चाहिए? आपको बात समझ में आ रही है? इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सके। मैं आपको समझा देती हूँ ये जी। आप देखिए लिखा हुआ है मोस्ट आउटलेट्स ग्रो एक्सेप्ट फैसलाबाद, यानी जहां भी आउटलेट्स हमारे थे वो ग्रो कर गए हैं, लेकिन फैसलाबाद के अलावा विच सी ड्रॉपिंग ऑफ 10%। अगर आप एक गो में पढ़ लेंगे ना तो आपको शायद गलतियां डिटेक्ट ही ना हो, लेकिन ध्यान करो कितनी गलतियां इसके अंदर, आउटलेट्स गलत है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रो, यहाँ नीचे मैं आपको देती हूँ इसकी उसमें करेक्शन दी हुई है। एक्सेप्ट का वर्ड गलत है, ई एक्स वाला होना चाहिए था। फैसलाबाद के स्पेलिंग चेक करें जरा, फैसला बेड है ना, जो लोग फैसलाबाद के उनको वैसे तो पता है कि बेड कवर्स वहां बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेड यहाँ पे लगा दें, ठीक है। विच के स्पेलिंग वो वाले हैं जो विच होती है, जो जिनीज विच है ना, वो वाली स्पेलिंग है। और सी, यहाँ पे सी ठीक है, ड्रॉपिंग ये भी वर्ड चेंज किया जा सकता है। अब यहाँ पर उसने यहाँ पर आपको नीचे आपको दिया है मशवरा, क्या करो, आउटलेट्स गलत है, आउटलेट्स ऐसे होना चाहिए था लेफ्ट साइड वाला, एपॉस्ट्रोफी नहीं आएगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि प्लूरल करते वक्त एपॉस्ट्रोफी लगानी है, बिल्कुल नहीं लगानी, सिर्फ वहां लगाती है जहां पे एक डिजिट आ जाए या कोई लेटर आ जाए, जैसे मैंने आपको भी 7 C's में करके दिखाया है, ठीक है। और इसके बाद एक ग्रीव वर्ड आया है, नॉट ग्रो, ग्रीव आना चाहिए था, यस, उसमें पास्ट बताना था उसने। एक्सेप्ट के स्पेलिंग गलत थे, फैसलाबाद के स्पेलिंग गलत थे। विच जो है ये वाला विच चाहिए था क्योंकि ये विच लिखा हुआ है। और डिक्लाइन की जगह यहाँ पे डिक्लाइन वर्ड आना चाहिए था, ड्रॉपिंग की जगह पे उसको सिंप्लीफाई कर दें। तो ये सारा आपका ठीक करके नीचे उसने बता दिया। अच्छा, मैं आपको एक ये जरूरी बात बता दूं कि हम में से कुछ लोगों को मैंने देखा है,
मिस्टेक करते हैं। दो मिस्टेक्स आपको मैं क्लियर बताती हूँ जो बहुत ज्यादा करते हैं लोग लिखने में। एक अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे प्लूरल करते वक्त हर चीज के साथ, गलत। देर के स्पेलिंग गलत लोग करते हैं, THERE और THEIR फर्क नहीं करते, गलती कर जाते हैं। इसी तरह एक वर्ड है शेल, वैसे तो आजकल हम इस्तेमाल ही नहीं करते, SHALL और उसको SHELLLL कर देते हैं। इस तरह प्लीज ध्यान करें, गलतियां हम कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और एक मिस्टेक करते हैं, वो तो मैं खैर आपको नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह जब आपको लिखना सिखाऊंगी लेटर्स को, तो उसमें आपको मैं एग्जांपल्स भी दूंगी। आप जरा बहुत अच्छे खत लिखने वाले बन जाइएगा, मैं आपके मेरी एफर्ट जो है वो जाया ना जाए। मैंने बहुत ज्यादा उस पर काम किया होता है। आपको जो चीजें देती हूँ, आप समझ लें आपको तो एक आइसिंग के साथ बनाकर पूरी पुडिंग तैयार होती है, या चलो केक कह लो, फॉन्डेंट के साथ ऊपर डेकोरेट हुआ हुआ है, बस तुमने सिर्फ खाना होता है, ठीक है। तो उसको अच्छे तरीके से आप खा लें तो बेहतर है। तो आपको मैं चीजें सारी दूंगी, अच्छी ईमेल लिखना आ जाएंगी, अच्छे लेटर लिखने आ जाएंगे, तो तुम किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन जाओगे, एक बहुत बड़ा उनका सरमाया बन जाओगे, वो तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी बात है। एक मिस्टेक जो करती है, लास्ट बताने लगी, इसमें क्वेश्चंस पे आने लगी इससे इसके बाद, वो ये है कि आपने जब आप पैराग्राफ लिखते हैं ना, पता नहीं किसने आपको समझा दिया कि एक पैराग्राफ लिखो, उसके बाद अगला पैराग्राफ वहां से शुरू करो जहां से ऊपर वाला पैराग्राफ खत्म होता है। बिल्कुल गलत। पैराग्राफ मार्जिन अप्रोप्रिएट 5 स्पेसेस का होता है, ये मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो आपने टाइपिंग थोड़ी थोड़ी करनी सीखो, क्योंकि आपने ये करना है इंशाल्लाह। बाय द टाइम यू हैव योर पेपर्स, दे वुड बी गिविंग यू सम इंस्ट्रक्शंस टू डू सम प्रैक्टिस ऑन, ताकि तुम्हें समझ आ सके। अगर यू फाइंड समबडी हु इज अ सीनियर टू यू, आप उससे भी पता कर सकते हो, लेकिन आपको इंशाल्लाह इस पे गाइडेंस जरूर मिल जाएगी। तो ये सारा हमारा टॉपिक आज का खत्म हो गया। आज मैं बाकी 3 आपको कल पढ़ाऊंगी, वो थोड़े ज्यादा टफ है, थोड़े से टफ है, लेकिन टफ कुछ नहीं है इस लिहाज से कि कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको। अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स पे आती हूँ। मेरा ख्याल है कि अब किसी को फोन नंबर नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है सारों के पास व्हाट्सएप वगैरह हो गए हैं, ठीक है। और कलीम शेख कह रही है आवाज नहीं आ रही, पता नहीं, अगर ऐसा हो तो मैनेजमेंट वाले जरूर मुझे बताते हैं, ठीक है जी। आयशा खान वालेकुम अस्सलाम। उमेर अहमद बुक में 9 C's है, नहीं आपने 7 C's करने जो मैंने आपको बताए, यहाँ से बस 7 को उठा लो, ठीक है, जो आपकी कैप्लन में शायद लिखी हो, लेकिन आपको 7 C's करनी है जो मैंने आपको बताए हैं। मैं फॉलो कर रही हूँ हर्टा मर्फी को, ठीक है, जो आपकी रिकमेंडेड बुक है, और वैसे भी 7 ही होते हैं। अच्छा, इसके बाद है फिजिकल क्लासेस, मैनेजमेंट से पूछो, मुझे नहीं पता। मैंने चैप्टर 1 पढ़ लिया है, तो फिर अच्छा MCQs का आपको बताया है, तो MCQs करना शुरू कर दो भाई, 1000 MCQs करो, उससे शुरू हो जाओ, CA की बुक से शुरू हो जाओ, ठीक है। और इसके अलावा आपकी कैप्लन की हर चैप्टर में के बाद थोड़े थोड़े सवाल है, तो आपको इंशाल्लाह और भी मिल जाएंगे। लेकिन एक बुक है जो अभी शनावर ने आपको कई दफा की है आपसे शेयर, जहां से अब आपको मैं जवाब दे रही हूँ, उन्होंने आपको शेयर की हुई है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो उसे कहो, और जो गर्ल्स हैं वो GR से कहो, वो आपको शेयर कर देती है। टाइटल मैं ख्याल है उनका काम ही ये बेचारों का है कि वो आपको बार बार बताएं, ठीक है। कंसाइजनेस मीन शॉर्ट करना, ठीक है, किसी चीज को टू द पॉइंट कहना। अच्छा, इसके बाद ये मेथड ऑफ टीचिंग इज गुड, थैंक यू। Just a moment. जी मैं आपके सवालों के जवाब दे
इसके बाद है, और क्या सवाल है? वर्डी एक्सप्रेशन आप पूछ रहे हैं। वर्डी एक्सप्रेशन का मतलब है यानी बहुत ज्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करना, वर्बोसिटी। ठीक है, जब आप किसी कंसाइजनेस का ऑपोजिट होता है, बहुत ज्यादा अल्फाज, थोड़े अल्फाज में वो बात आप कर सकते हो। सर्विसेज बिजनेस में अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए फिर कॉस्टली लॉस रूट अप्लाई होगा। जी हाँ, ऐसा ही है। आपने कॉस्टली लॉस रूट जो है वो आपने, कोई भी चीज है आप इवन इवन मैं आपको बताऊं, आपकी बुक में ये बुशरा अकरम बात करिए। बुशरा, मैं आपको ये बताऊं कि आपकी बुक जो है मफी, उसमें लिखा हुआ है कि नॉट गिविंग कंप्लीट मैसेज इक्वल्स लाइंग, यानी अगर आपने मैसेज पूरा ना दिया तो हम इसको झूठ समझेंगे। और आपको पता है लाइंग जो है वो कहीं जाकर इलीगल भी हो जाती है। यू कांट डिसीव अ पर्सन। ठीक है, इसके बाद है जी नोट्स चाहिए, बुक चाहिए। शनावर से बात कीजिए। शरफ जब्बार। सीए मुश्किल है या आईसीएम में? कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपका इंटरेस्ट की बात है। सीए के बारे में जरा थोड़ा ये है कि वो अक्सर लोग कहते हैं उनका होता ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं, मगर मैंने बहुत से लोगों को एक ही गो में जाते देखा है। आई कांट से एनीथिंग। इस तरह तो मेडिकल भी मुश्किल है। सबसे मुश्किल तो मुझे मेडिकल ही फील होता है, कि उसलिए मुश्किल है जितनी किताबें वो लोग पढ़ते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। अब वो कह रही है जी, अस्का सुल्तान कह रही है जीआर को प्लीज कर लो कॉल। ठीक है, जीआर आपको नोट्स दे देंगी। आज के नोट्स नहीं मिलेंगे, आज के कल मिलेंगे। और मैं नोट्स में कोशिश तो करती हूँ कि कोई चीज रिपीट ना हो। अगर इफ यू कम अक्रॉस एनी लाइन विच इज रिपीटेड तो प्लीज मुझे इसके लिए फॉरगिव कर देना, क्योंकि मैं बहुत सारी जगहों से इकट्ठा करके आपका काम करती हूँ और इम्पोर्टेंट चीजें आपको बताती हूँ। आईसीएम में फिर कह रहे हैं मुश्किल है। अरे नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। डिटरमेंट हो जाओ जहां से। माइंड योर लैंग्वेज, शेरोज खान कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं करी। माइंड योर लैंग्वेज भी एक था, हाँ वो भी है, उसमें भी लैंग्वेज है। नहीं, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। मैं चेक कर लूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। वो एक स्टेज था, उसमें लैरी आई थिंक एक बंदे का नाम है, एक फ्रेंच होता है। और मैं आपको बताऊंगी, मैं भूल गई उसका नाम, भूल गई। उसके बाद है सैयद वजी, इट्स माय फर्स्ट क्लास, व्हाट टू डू? क्या करो, म्यूजिक सुनना शुरू कर दो। ठीक है, वजी अब्बास, बार बार बता रही हूँ, टॉक टू व्हाट? शनावर। ठीक है, शनावर से कर लें बात, वो आपको सब कुछ दे देता है। शनावर, तुम कितना बिजी रहते हो मुझे बता देना। काइंडली गाइड मी, वजी अब्बास कह रहे हैं। हाँ जी, मैंने आपको बताया है। अच्छा, मैं अभी आपको स्क्रीन पे नंबर दिखा देती हूँ दोबारा से। न्यूमेरिकल डेटा होता है जिसमें आपने डेटा दिया है, जिसमें आपने डिजिट्स दिए हैं। जैसे आपने कहा जी, आपने 10% कहा, आपने 75.3% कहा, ये न्यूमेरिकल डेटा हो गया। क्लासेस के फिजिकल होने का मुझे नहीं पता। प्लीज, आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं। आपका नाम शीस हुमाम अकबर, अगर मैं सही बोल रही हूँ, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। देयर एंड देयर में डिफरेंस पूछ रहे हो? एहसन रिजवान, देखो, देयर THERE मीन वहां, THEIR देयर मीन तुम, उनका। जैसे देयर हाउस, तो ये EIR वाला होगा। क्या हो गया आपको? फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी? मुझे नहीं पता शनावर, पूछो मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट से पूछिए प्लीज। आई वांट PDF फाइल्स। बुशराक्रम, GR से पूछिए। अमन, अमान, अमन, अमन, ओके। आई एम न्यू, नाइस टू मीट यू। इशफाक अहमद, आप कह रहे हैं आई एम न्यू, तो मैं आपको भी नंबर दे देती हूँ। अभी मैं नंबर आपको दे देती हूँ। बुक्स के बारे में शनावर से पूछिए, नंबर्स दे देती हूँ आपको मैं। अब्दुल करीम, आई हैव फर्स्ट क्लास, ये मैं आपको बताती हूँ। बुक के बारे में सब आपको बता देंगे। अस्का सुल्तान, प्लीज आस्क GR। कोर्स की ऑफिशियल बुक इस तरह से नहीं है, लेकिन आपको जो बुक्स लगी हुई है वो मुश्किल है आपके लिए।
फॉरेन ऑथर्स की हैं, ठीक है। बस भी करो बच्चों। ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेंगे? ये मैं नोट्स आपको, नासिर मुबारक, मैं नोट्स आपको खुद तो भेज रही हूँ, किताबें भी आपको पीडीएफ कर दी है मैंने। प्रिटेंशियस वर्ड शायद था, प्रिटेंशियस का मतलब बनावटी, प्रिटेंड करना, बनावट करना, ठीक है। आप पूछ रहे हैं मुझे अब्दुल अरसलान, आप कहाँ से? उसामा बट पूछ रहे हैं, उसामा बट आई एम फ्रॉम लाहौर। जी मैं आपको अब्दुल करीम भेजती हूँ नंबर आपको। आई डोंट हैव नंबर, ज्यादातर लोगों ने ये कहा है। फर्स्ट डे है, हु इज शनावर, मैं बताती हूँ भी आपको, उसका नंबर देती हूँ। आईपीसी करा दिया आपने मिस, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। 7 सीज कर लें, अभी वो जो रह गया करवा दूंगी। मैं सिर्फ आपको अगले ले आऊंगी ना वीक में, तो मैं आपको जरा डाल दूं पहले लेटर्स के ऊपर, ताकि तुम प्रैक्टिस शुरू कर दो, ठीक है। सारिम आप मुझे पूछ रहे हो, तो आईपीसी वगैरह मैं आपको करवा लूंगी, लेकिन मैं, मुझे ये फिक्र है कि मैं आपको अभी लेटर्स लिखना सिखा दूं, तो साथ साथ आपको करो, क्योंकि थियरी तो फिर भी बंदा पढ़ लेता है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको लिखना नहीं आएगा। जी अवैस लतीफ, आपको मैं नंबर देती हूँ, बिल्कुल सही है। और अब आपने कोई बुक पब्लिश नहीं की? जी हमारी जो बुक है बिल्कुल है, लेकिन उस पे आपका कवरेज नहीं आ रही, इसलिए हम कट पेस्ट करके आपको देते हैं, ठीक है उमैर अहमद। तो आपका कवरेज पूरी नहीं आ रही। अभी मैं जी आपका ये बंद करके, तो मैं आपको प्लीज नंबर आपको देती हूँ, जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको नंबर देती हूँ। जी आपको स्क्रीन पे नंबर आ गया नजर, शनावर का ऊपर नंबर है, ये बॉयज इसको कंसल्ट कर लें प्लीज। और जो गर्ल्स हमारे ग्रुप में नहीं आई हैं, वो मुझे अपना बस सिर्फ आप मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं जीआर को अपना, प्लीज अपना नाम जरूर बताया करो, मैसेज करो तो नाम बताया करो, मुझे पता नहीं चलता मेल है कि फीमेल है। अपना नाम बता दो, ये बताओ अगर कोई नाम बाज ऐसे भी होते हैं जो कि दोनों ही के हो सकते हैं, तो प्लीज मुझे बता दिया करें आप लोग, स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो मुझे बता दिया करें, कि ताकि मैं आपको जीआर का नंबर दे दूं। इज दैट क्लियर नाउ? टाइम इज अप, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, और कल नोट्स और आपको स्लाइड्स भी मिल जाएंगी। स्लाइड्स को खैर बहुत वो नहीं है उसमें चीजें, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। और बुक्स का और शनावर आपको गाइड करते हैं, और जीआर आपको गाइड करती हैं। जो गर्ल्स हैं वो, मेरा नंबर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर करीं, और अगर कभी किसी को मेरे से कांटेक्ट करने की जरूरत पड़े, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर लिया करो, ताकि मुझे टाइम दे लिया करो बात करने का, क्योंकि मैं बिजी होती हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।